اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں وزیر صلاح الدین کے سامنے رضا اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وزیر صلاح الدین اسے کہتے ہیں تم کیا مرنا چاہتی ہو؟ تو رضا کہتا ہے اب میں سب کچھ خطرے میں ڈال سکتا ہوں، تمہارے حکم سے اس نے محترم خلیفہ کو زہر دیا۔ جواباً وزیر صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں تمہاری وفاداری نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فوراً سے پہلے شمسہ خاتون کو چھوڑ دو۔ مگر رضا شمسہ کے بال پکڑتے ہوئے کہتا ہے اگر تم اسے لے کر جا سکتے ہو تو آؤ اور لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین خنجر اس کی بازو میں دے مارتے ہیں تو رضا سپاہیوں سے کہتا ہے مار ڈالو اسے۔ حکم ملتے ساتھ ہی سپاہی وزیر صلاح الدین پہ حملہ کر دیتے ہیں اور وزیر صلاح الدین ایک ایک کر کے انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر شمسہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ قاہرہ میں آگے بڑھتے ہوئے بورو سائرہ سے پوچھتا ہے یہ اہم معاملہ کیا ہے؟ تو سائرہ کہتی ہے میں باری برکم تجارتی جہاز قسطنطنیہ سے دمیات لاؤں گی اور مجھے اس بارے میں محترم وزیر سے بات کرنی ہے۔ بورو پوچھتا ہے سائرہ خاتون اس کا مقصد کیا ہے؟ تم نے کیا ماتم کرنے سے پہلے پیسوں کا پیشہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ تو سائرہ کہتی ہے ماتم میرے دل میں ہے، میں اپنے بابا کو ان کی میراث کی حفاظت کرتے ہوئے یاد کر رہی ہوں۔ بورو کہتا ہے خونی میراث؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں وزیر کے محل میں قبول کیا جائے گا؟ تو سائرہ کہتی ہے اولاد کب سے اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ بورو کہتا ہے یہ تبھی درست ہے جب بچہ ساتھی نہ ہو۔ سائرہ کہتی ہے بغیر ثبوت کے؟ تو بورو ایک دم سے کہتا ہے میں قاضی نہیں ہوں، مجھے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دماغ اور دل سے حکم سنا رہا ہوں، میرا بھائی وزیر صلاح الدین بھی ایسا ہی کرے گا، میری طرف سے معلومات کا انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بورو آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک سپاہی قاضی فاضل کے پاس آ کر کہتا ہے تحقیقات کے مطابق شمسہ خاتون کے گھر پر پتھراؤ کرنے والے معاون رضا سے رابطے میں تھے، جو ہمیں قاضی فاضل کہتے ہیں جیسا کہ میں نے توقع کی تھی فتنے کا منبع ایک بار پھر سے خلیفہ کا محل ہے، اس لیے میں بزرگ تیزی سے وہاں آتا ہے اور ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے دمیات سے خط آیا ہے، خبر بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ خط پڑھتے ہوئے قاضی فاضل بھی چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں شہنشاہ نے کچھ کو دیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اس لیے میں بورو بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور قاضی فاضل کو پریشان دیکھ کر کہتا ہے قاضی فاضل خیر ہو، تمہارا چہرہ پیلا ہو گیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو قاضی فاضل اسے کہتے ہیں بازنطینی بحریہ دمیات پہنچ چکی ہے، ان کے فوجیوں کو اترنے سے روکنے کے لیے ایک مزاحمتی لائن بنانی ہوگی، لیکن اگر مدد ان تک نہیں پہنچتی تو دمیات انہیں نہیں روک پائے گا۔ یہ سن کر بورو غصے سے کہتا ہے سائرہ جانتی تھی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں بورو کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں بورو کہتا ہے میں نے بھی سائرہ خاتون سے بات کی ہے، اس نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ سے بحری جہاز لائے گی، وہ ہمیں کھلے عام للکار رہی تھی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ہمیں فوری طور پہ وزیر صلاح الدین کو اطلاع دینی چاہیے، لیکن کیسے؟ تو بورو کہتا ہے میں پیچھے جا کر اپنے بھائی کو تلاش کروں گا، میرا دماغ ویسے بھی اس کی طرف تھا، آپ ہمارے آ جانے تک اجلاس کی تیاری کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بورو چلا جاتا ہے۔ جنگل میں وزیر صلاح الدین مسلسل غداروں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے 5 بجتے ہیں، 5 میں سے 3 حملہ کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے رضا شمسہ خاتون کو لے کر بھاگ پڑتا ہے تو وزیر صلاح الدین کو بہت غصہ آتا ہے۔ شمسہ خاتون بھی مزاحمت کی کوشش کرتی ہے مگر رضا انہیں دبوچ لیتا ہے اور ان کا گلا دباتے ہوئے کہتا ہے تم اب میرے ہاتھ میں آ گئی ہو شمسہ۔ جواب میں شمسہ خاتون کہتی ہیں چھوڑو مجھے چھوڑو، مگر رضا کہتا ہے اب کی بار وزیر بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا، معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ مگر اگلے ہی پل وزیر صلاح الدین پیچھے سے آتے ہیں اور تلوار اس کی پیٹ سے آر پار کر دیتے ہیں۔ رضا گرتا ہے اور اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ وزیر صلاح الدین شمسہ کو کھولتے ساتھ اس کا حال احوال پوچھتے ہیں تو شمسہ کہتی ہے صلاح الدین میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایک اچھائی کے سوا کیا کیا ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں ان کے درمیان رہ رہی ہوں لیکن یہ کام نہیں کر رہا، میں جانا چاہتی ہوں۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ شمسہ کہتی ہے نہیں گزرے گا صلاح الدین، میری ماں کی طرح ان ظالموں کے ہاتھ میں جب تک تنہا اور اکیلی ہوں تب تک یہ نہیں گزرے گا۔ جواب میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں۔ یہ سن کر شمسہ کہتی ہے یہ اکیلاپن مختلف ہے، میں کچھ بھی کروں درد کم نہیں ہوتا۔ وزیر صلاح الدین سے کہتے ہیں میں تمہارے دکھ اور درد میں شریک ہوں، تم نے ایک بار پوچھا تم میرے لیے کیا ہو؟ پہلے دن سے جب میں نے تمہیں دیکھا میں جواب جانتا ہوں، تم میری آنکھوں کی روشنی ہو، اگر تم مجھے چھوڑ کر جاتی تو میں تمہارے پیچھے جا کر پھر سے تمہیں ڈھونڈ لیتا۔ شمسہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا تم واقعی آتے؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میرے آکاری سے پاک اس شکل تمہارے دل اور تمہاری ہمت کا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی محل میں ایک محافظ ہے، تخت اور یہ خلط عارضی ہے، صرف محبت دائمی ہے۔ جس لمحے سے میں نے تمہیں پہلی بار اس میدان میں دیکھا تھا تم نے میرے دل میں جو آگ جلائی تھی، جس کے پتھر اور مٹی کے لیے میں مروں گا اس قدس کے لیے بے لقب اور بے تاج تمہارے سامنے کھڑے صلاح الدین یوسف کے سر کے تاج بنو گی۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ جانو کے حقیقی سلطانی جب تم میری زوجہ بننا قبول کرو گی تب شروع ہوگی۔ شمسہ کہتی ہے تمہارے ساتھ ایک ہی دن میں چلنے والی نہیں ہوں تب بھی؟ جواب میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے شمسہ، اگر وہ چاہے تو تمہارے دل کو پھیر دے گا، کیا میں تمہارا جواب نہیں سنوں گا؟ تو شمسہ کہتی ہے میرا جواب میرے چہرے پہ ہے، تم جب دیکھتے ہو میرا کانپتا دل، تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں اور تمہاری آواز، تمہاری خوشبو، تمہارا سب کچھ، میں شروع سے ہی ان کے ساتھ اتنی واقف ہو گئی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتی ہوں، میں ہمیشہ سے تمہاری ہوں صلاح الدین۔ اس لیے میں گھوڑے پر سوار بورو وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی تیزی سے وزیر صلاح الدین کے پاس آتا ہے، پھر ان سے کہتا ہے بازنطینی بحریہ دمیات پر اتری ہے، ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایبلن میں سبیلا بالین سے کہتی ہے میں اب کچھ سے وابستہ نہیں ہوں، میں محسوس کرتی ہوں کہ میرا تعلق یہاں سے ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں بالین۔ تو بالین کہتا ہے سبیلا تمہارے الفاظ نے مجھے بہت زیادہ خوش کیا ہے۔ سبیلا کہتی ہے لیکن میرے بابا میری شادی لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں۔ بالین کہتا ہے میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ سبیلا کہتی ہے پھر میں اب اس کے لیے کچھ نہیں جاؤں گی، اگر تم چاہو تو۔ بالین کہتا ہے میں یقیناً چاہتا ہوں، تم سے جب میری شادی ہوگی یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا، میں ایسی شادی نہیں کروانا چاہتا جس کے لیے تم اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو۔ سبیلا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے بالین اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، میرے بابا کبھی نہیں۔ تو بالین ایک دم سے کہتا ہے وہ اجازت دیں گے۔ سبیلا پوچھتی ہے یہ کیسے ہوگا؟ ادھر وزیر صلاح الدین شمسہ خاتون کو لے کر قاہرہ پہنچتے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے قاضی فاضل خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں محترم وزیر صاحب اللہ کا شکر ہے آپ دونوں سے سلامت واپس آ گئے ہیں، اجلاس تیار ہے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں قاضی فاضل اجلاس میں آنے سے پہلے شمسہ خاتون کو میری ماں کے پاس لے جائیں، ان کے لیے کمرہ تیار کریں۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں شمسہ خاتون کی آمد سے ہمارے محل کو پھر سے عزت ملی ہے۔ شمسہ وزیر صلاح الدین سے کہتی ہے میں مصر کے لیے دعا کروں گی وزیر صلاح الدین، آپ اس مصیبت سے بحفاظت نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین آگے
आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में लड़काई इमारलेग और मारिया से कहता है बाज़ंतीनी बैरिया बगैर किसी परेशानी के दमियात के साहिल के करीब पहुंच गई है। फिर इमारलेग विलियम से पूछता है कौन चाहती को दमियात जाने के लिए खबर भेजी है ना? तो विलियम कहता है इज्जत मात भेजी है। मारिया लड़काई से कहती है लड़काई तुम्हारे यहाँ रहने का फैसला बहुत करामत साबित हुआ है। इमारलेग कहता है मलका ठीक कह रही है, दमियात में बाज़ंतीनी बैरिया हमले का सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ज्यादा अहम प्राइज है, इसलिए में शहजादा बाल्डोन तेजी में वहाँ आता है। उसे इस तरह से आता हुआ देखकर इमारलेग एकदम से उसके पास आता है और पूछता है क्या बात है? तो बाल्डोन कहता है मेरी बहन चली गई है, मुझे ये खत उसके कमरे में मिला। इमारलेग एकदम से खत खोलकर पढ़ता है, फिर गुस्से से कहता है वो एबडेन में बालन के पास गई है। यह सुनकर मारिया और लड़काई को भी बहुत गुस्सा आता है। इमारलेग बाल्डोन से कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन महल वापस आ जाएगी। ये कहते साथ ही उसे गले लगा लेता है। कायरा में आगे बढ़ते हुए काजी फाजल शमसा खातून से कहते हैं वज़ीर सलाउद्दीन ने तुम्हें रास्ते से वापस लौटा दिया है। उन्होंने तुम्हारा ज़हन तब्दील करने के लिए तुमसे बात की होगी है ना? तो शमसा कहती है उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन मैं इस बार बात नहीं कर सकी। वो चाहते थे कि मैं उनकी बीवी बनूं। यह सुनकर काजी फाजल बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अल्लाह एक तरफ से मुसीबतें भेजता है तो दूसरी तरफ से कामयाबियां भेजता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने क्या जवाब दिया? शमसा कहती है मैंने कबूल किया, लेकिन मैंने वो नहीं कहा जो मुझे कहना चाहिए था। काजी फाजल कहते हैं तुमने क्या कहना था? तो शमसा कहती है मैं मुसलमान हो गई हूँ काजी फाजल। यह सुनकर काजी फाजल की खुशी में मजीद इजाफा हो जाता है और वो कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ शमसा, तुम्हारा ख्वाब सच्चा ख्वाब था। शमसा कहती है आपसे दरख्वास्त है कि ये हमारे दरमियान ही रहे, मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि शादी के लिए मैं मुसलमान हो गई हूँ। काजी फाजल कहते हैं जैसा तुम चाहो। ये कहते साथ वो जैसे ही जाने लगते हैं तो शमसा ने रोकते हुए पूछती है कौन स्मेला, क्या अभी वो यहाँ है? जवाब में काजी फाजल कहते हैं हाँ वो यहाँ है, लेकिन होश में नहीं है। यह सुनते साथ ही शमसा सोच में पड़ जाती है। उधर इजलास में वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं बालेन ने रेत के टेले से हमारी तवज्जो हटाई है। अच्छा तो जासूस, क्या उन्हें किसी पे शक नहीं था? तो बोरो कहता है वो तिजारती इजाजत लेकर बहरे रूम में दाखिल हुए, इसलिए जासूसों ने हमें इतला देने की जरूरत महसूस नहीं की। वहाँ पहुंचने वाले काजी फाजल से वज़ीर सलाउद्दीन पूछते हैं आपका क्या ख्याल है फाजल? तो काजी फाजल कहते हैं अगर दमियात गिरता है तो कायरा का रास्ता बाज़ंतीनियों के लिए खुल जाएगा और इस सूरत में कुछ का बादशाह हमारी तरफ बढ़ेगा, हमें जल्द फैसला करने की जरूरत है। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं दमियात के गवर्नर को इतला दो कि कायरा की फौज आ रही है, वो जितना हो सके मुजामत करें। एथिस फौरन फौज जमा करो, हम जल्द रवाना होंगे। तो एथिस कहते हैं मोहतरम वज़ीर हज़रत, जबकि खलीफा के सिपाहियों ने फौज से अलहदगी इख्तियार कर ली है, हमारी तादाद कम हो गई है। तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं तादाद से फर्क नहीं पड़ता, यह मुश्किल वक्त में धोखा देने से बेहतर है। करतेगन तुम और तुम्हारे आदमी शहर में दिन रात चौकस खड़े रहेंगे, हम जब दूर होंगे तो कायरा तुम्हारे पास अमानत होगा। सबको होशियार रहना चाहिए। मेरी राय में ये मिस्र में हमारा आखिरी इम्तिहान है, अल्लाह हमारी जंग मुबारक करे। यह सुनकर सब आमीन 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 कहते हैं। जंगल से चातियों एक बड़ी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि बाज़ंतीनी फौज बगैर थके दमियात पहुंच जाएगी, वरना वो सहरा की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो कमांडर कहता है आपके तावन से कमांडर सिंगारियोस की फौज तेजी से सहरा से गुजरेगी। चातलियन कहता है ठीक है मेरा सुर्ख सितारा, क्या तुम्हें उसका कोई सुराग मिला? कमांडर कहता है बदकिस्मती से नहीं, लेकिन आदमी तलाश जारी रखे हुए हैं। चातलियन गुस्से से कहता है जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सजा दी जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते। कायरा में वज़ीर सलाउद्दीन लतीफ से पूछते हैं हम प्रिंस बाल्डोन के निजाम के बारे में क्या कर सकते हैं लतीफ? तो लतीफ कहता है मेरे वजीर, मैंने देखा है कि मेरे खुसूसी मरहम ने कुछ मरीजों में बीमारी का अमल सुस्त कर दिया है, ताहम इलाज मुकम्मल नहीं कर सका। वक्त गुजरने के साथ मैंने जरासीम को रोकने के लिए कुछ और तरीके दरियाफ्त किए हैं, बेशक अल्लाह शिफा देता है। यह सुनकर खलील कहता है मेरे वजीर, मैं अपनी हद से तजावज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस इलाज को बादशाह मालिक के खिलाफ फायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनकर वज़ीर सलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं क्या बच्चों की बीमारी का इस्तेमाल हमारे लिए मुनासिब होगा खलील? खलील शर्मिंदा होते हुए कहता है मेरे वजीर माजरत हुआ हूँ, मेरा यह मतलब नहीं था। वज़ीर सलाउद्दीन काजी फाजल से कहते हैं काजी फाजल, बालिन को पैगाम भेजो और उससे इस बारे में बताओ उन्हें इलाज में देर नहीं करनी चाहिए। मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। खास तौर पर कहो कि हमारे महल में बेहतरीन नॉलेज मौजूद है, बाकी उन पे मुनसर है। फिर खड़े होकर कहते हैं फतह की तैयारियों को तेज करो, ये एक मुश्किल दिन होगा। वज़ीर सलाउद्दीन गुस्से में खलील को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। काजी फाजल खलील के पास आकर उससे कहते हैं ना अहली और कमजोरी अलग अलग चीजें हैं, ऐसे नेक सुल्तान से तरबियत हासिल करना एक अजीम तोहफा है खलील, तुम्हें इसकी कदर जाननी चाहिए। ये कहते साथ ही काजी फाजल भी चले जाते हैं और खलील काफी शर्मिंदा दिखाई देता है। कुछ में मालिक लड़काई को खत देते हुए कहता है फौरन एबलेन जाओ, ये मकतूब बालिन को दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। लड़काई खत लेते हुए कहता है महाराज जैसे आपका हुक्म, शहजादी वहाँ वापस आ जाएगी जहाँ से उसका ताल्लुक है। ये कहते साथ ही लड़काई चला जाता है और मालिक विलियम से कहता है विलियम बाल्डोन की हालत ने मुझे परेशान कर दिया है। तो विलियम कहता है परेशान होने की कोई बात नहीं महाराज। मारिया कहती है बहन के भागने से लड़के को थोड़ा ऐसा महसूस हुआ, बस और कोई बात नहीं, हमारे पास इस वक्त ज्यादा अहम मसाइल हैं, खास करके सबीला। तो मालिक एकदम से उसे खामोश करवाते हुए कहता है मलका, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मामलात सिर्फ मेरी फिक्र के लिए हैं। यह सुनकर मारिया को बहुत गुस्सा आता है। कायरा में फातिमा खातून शमसा के साथ बैठी होती हैं और उसके वापस आने पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती हैं। फिर उससे पूछती हैं बेटी इसके पीछे क्या हिकमत है? तो शमसा कहती है माँ बेहतर होगा अगर सलाउद्दीन समझा दे। तो वहाँ पहुंचने वाले वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं क्या वजाहत करूँ? जवाब में फातिमा खातून कहती है मैं शमसा से उसके कायरा वापस आने वाले राज के बारे में पूछ रही थी। जवाब में वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं अनकरीब हमारी शादी होगी इंशाल्लाह। यह सुनकर फातिमा खातून की खुशी दोबारा हो जाती है और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। फिर उन दोनों से कहती हैं मैं तुम दोनों को मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर सलाउद्दीन शमसा से कहते हैं हम तुम्हारा हाथ किससे मांगे? तो शमसा कहती है मेरे ख्याल में काजी फाजल इसके लिए मौजूद तरीन शख्स हैं। जवाब में वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़की की तरफ से हैं। माँ मैं दमियात मुहिम पे जा रहा हूँ, मुझ पे अपना हक हलाल करें। तो फातिमा खातून कहती है मैं हमेशा के लिए तुम पे अपना हक हलाल करती हूँ, फतह के बाद अल्लाह की तरफ से शादी का तोहफा होगा इंशाल्लाह। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मुहिमात के दरमियान हमारे पास गम और खुशी दोनों हैं। शमसा कहती है जिंदगी एक तवील सफर है, जो चीज अहम है वो अपने जीवन साथी को तलाश करना है, खैरियत से जाओ और फातेह बनकर लौटो। इसके साथ ही वज़ीर सलाउद्दीन वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते सीधे काजी फाजल के पास आते हैं तो काजी फाजल उनसे कहते हैं आपकी फौज जंग के लिए तैयार है वज़ीर हज़रत। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं महल और शहर के फासिक दामाद के बारे में क्या ख्याल है? जवाब में काजी फाजल
فاضل کہتے ہیں میں اسے ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ وزیر صلاح الدین رکتے ہوئے کہتے ہیں قاضی فاضل اس معاملے کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرنا، جبکہ میلا خاتون شہر میں ہے وہ شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی توجہ اس طرف رکھیں اور جو بھی ضروری ہو کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی حفاظت کریں جو ہماری پناہ لیتے ہیں۔ شہر میں اعلان کر دیں کہ میں اور شمسہ خاتون جلد شادی کریں گے، اعلان کریں تاکہ افواہیں ختم ہو جائیں۔ قاضی فاضل خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ برکت دے وزیر حضرت، کیا ہم سلطان نور الدین کو اس خبر سے آگاہ کریں؟ اس لیے میں وہاں یاروکی آتا ہے اور کہتا ہے کافر فوج دمیات پہنچ چکی ہے صلاح الدین، میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مدد کے لیے آیا ہوں۔ یاروکی کو دیکھ کر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں قاضی فاضل اب کوئی ضرورت نہیں، یاروکی خبر شام لے جائے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ میلا سو رہی ہوتی ہے کہ شمسہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، وہ اس کے پاس بیٹھ کر غصے میں اسے دیکھتے ہوئے خنجر نکال لیتی ہے، پھر وہ جیسے ہی وار کرتی ہے میلا کی آنکھ ایک دم سے کھل جاتی ہے۔ ایبلن میں بالن اور سبیلا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دونوں کافی خوش دکھائی دیتے ہیں کہ اس لیے وہاں مارکوس داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے کون تو لڑکایا آیا ہے۔ یہ سن کر سبیلا پریشان ہوتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے، بالن بھی کھڑے ہو کر کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، تم میرے محل میں ہو، اس لیے میں لڑکایا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے شہزادی سبیلا میں آپ کو گھر لے جانے آیا ہوں۔ یہ سن کر سبیلا پریشان ہو جاتی ہے، کبھی لڑکایا کی جانب دیکھتی ہے اور کبھی بالن کی طرف۔ قاعدہ میں میلا اٹھتے ہوئے کہتی ہے تمہارے خیال میں تم کیا کر رہی ہو شمسہ، مجھے کیا تم مارنے والی تھی؟ تو شمسہ کہتی ہے ان دنوں محل میں بچھو بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ خنجر کے ساتھ لگا ہوا بچھو سے دکھاتی ہے، مگر میلا غصے سے کہتی ہے باہر نکلو، میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ تو شمسہ کہتی ہے یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو میلا؟ تو میلا کہتی ہے تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شمسہ کہتی ہے یا پھر شیطان چاہتی ہوں جسے تم نے میرے پیچھے بھیجا تھا، کیا وہ تمہاری جان بھی لینا چاہتا ہے؟ تمہیں وہ کام ختم کرنا چاہیے جو میں نے شادی میں دورہ چھوڑا تھا، ورنہ تمہارا حشر بھی گلزارہ کی طرح ہوگا۔ میلا کہتی ہے میں کچھ کے محافظ کہہ رہے کہ کون سوں، مجھے کم نہ سمجھو۔ شمسہ کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے پھر تم نے کچھ کے بادشاہ کے بجائے مصر کے وزیر سے مدد کیوں مانگی؟ میلا کہتی ہے یہ کس قسم کے سوالات ہیں، تم مجھ سے پوچھنے والی کون ہو؟ جواباً شمسہ کہتی ہے میں مصر کے وزیر صلاح الدین کی ہونے والی بیوی ہوں جس سے تم نے پناہ مانگی ہے۔ یہ سن کر میلا بہت پریشان ہو جاتی ہے، شمسہ چلی جاتی ہے۔ ایبلن میں سبیلا لڑکائی سے کہتی ہے لڑکائی میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں اپنے آپ کو ایک ناممکن خواب کے طاقوں میں ضائع نہ کرو۔ تو لڑکائی کہتا ہے میری فکر بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ہے کونت بالن، مجھے امید ہے کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہ اپنے لیے اور ایبلن کے لوگوں کے لیے صحیح ہوگا۔ بالن سبیلا سے کہتا ہے مہاراشٹر میں واپس جاتے ہیں۔ لڑکائی کہتا ہے تم فوراً شہزادی سبیلا کو میرے حوالے کرو گے۔ یہ سن کر بالن اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کچھ میں ولیم امارلیک سے کہتا ہے جو کچھ آپ شہزادی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو امارلیک کہتا ہے وہ عشق جو مشکلات سے نہ گزرا ہو وہ عشق نہیں ہے ولیم، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ سبیلا بالن سے محبت کرتی ہے، لیکن کیا بالن کیا وہ بھی میری بیٹی سے اسی طرح پیار کرتا ہے؟ یہ جاننے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں اس طرح آزمایا جائے۔ ولیم کہتا ہے لیکن آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ اس کی شادی لڑکائی سے کریں گے اور آپ نے شہزادی کو نہیں بتایا۔ امارلیک کہتا ہے اگر میں اسے بتاتا تو یہ کام نہ کرتا، ان کے عشق کا امتحان لیا جائے گا، اگر وہ امتحان پاس کر لیتے ہیں اور بالن اپنی محبت کی حفاظت کرتا ہے تو ان کی خوشی کو یقینی بنانا میرا فرض ہوگا۔ ولیم کہتا ہے آپ ملکہ اور لڑکائی کو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو امارلیک کہتا ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ بادشاہوں کو بھی سچے عشق کے سامنے جھکنا پڑتا ہے ولیم، یہ ان کا بھی امتحان ہوگا۔ ایبلن میں لڑکائی بالن سے کہتا ہے اگر تم نے شہزادی سبیلا کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں کچھ کی پوری فوج کو یہاں لے آؤں گا۔ جواباً بالن کہتا ہے شہزادی کچھ واپس جائے گی لیکن میں اس کے ساتھ جاؤں گا، میں بادشاہ امارلیک کی رضامندی کے ساتھ اس عورت کو جسے میں پیار کرتا ہوں واپس ایبلن لے آؤں گا۔ اگر تم اس عورت کو جسے میں پیار کرتا ہوں میری اجازت کے بغیر قلعے سے باہر لے جانے کا سوچ رہے ہو تو پھر تمہیں کچھ کی فوج سے بھی بڑی فوج کی ضرورت ہوگی۔ لڑکائی شہزادی تیار ہو جائیں، ہم کچھ جا رہے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دمیات شہر کو دیکھتے ہیں جس میں وزیر صلاح الدین نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے اور وہ نقشے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہاں پہنچنے والا بورو کہتا ہے بھائی دمیات بازنطین کا مقابلہ نہیں کر سکا، انہوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج قاہرہ کی جانب رواں دواں ہے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ دمیات مزید کچھ دیر انہیں روک پائے گا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنی جلدی گر جائے گا، ہمیں کفار کی فوج کو فوری طور پر روکنا ہوگا ورنہ یہ آگ ہم سب کو جلا دے گی، ہمیں سلطان کی امداد پہنچنے تک انہیں الجھا کر مزید وقت حاصل کرنا ہوگا، ہمیں بازنطینی فوج کو اچانک حملے سے کمزور کرنا ہوگا اور قاہرہ کی طرف ان کی پیش قدمی کو سست کرنا ہوگا۔ شام میں یاروکی سلطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان بازنطینی فوج نے دمیات پہ چڑھائی کر کے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ سلطان کھڑے ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں ہو؟ اب ہمارے پاس فوج کے ساتھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ فوج کی کمان سنبھالوں گا اور صلاح الدین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ سلطان جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں لڑکھڑا جاتے ہیں، سب انہیں سارا دیتے ہوئے پوچھتے ہیں سلطان کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، یاروکی فوج کی تیاریوں کا خیال رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی یاروکی چلا جاتا ہے اور سلطان کو اس طرح سے تکلیف میں دیکھ کر ان کے ساتھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلطان تخت کے سارے جا بیٹھتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل سے آگے بڑھتے ہوئے چاتیون کماندار سنگاریو سے کہتا ہے میری مبارکباد قبول کریں، چھوٹے سے بختر بند دستوں کے ساتھ ہم نے دمیات پر میرے توقع سے کہیں زیادہ جلدی قبضہ کر لیا ہے۔ تو سنگاریوس کہتا ہے میں اپنے سپاہیوں پر اس قدر فخر نہیں کر سکتا، صلیبی سے قبول کرنے پر زور دے رہے ہیں لیکن روم کے حقیقی وارث ہمیں چاتیون کہتا ہے اہم بات قاہرہ کو زنگیوں سے واپس لینا ہے، جب ہماری فوجیں متحد ہو جائیں گی تو نہ صرف ہمارے پاس قاہرہ بلکہ شام، موصل، حلب اور یہاں تک کہ پوری اسلامی سرزمینوں پر بھی قبضہ کرنے کی طاقت ہوگی۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑی فوج دکھائی دیتی ہے۔ کچھ میں ماریا مالک سے کہتی ہے مجھے امید ہے کہ شہزادی سبیلا اب مزید بچوں جیسی حرکتیں نہیں کرے گی اور لڑکائی کے ساتھ محل واپس آنا قبول کرے گی، اس لیے میں وہاں لڑکائی آتا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ماریا کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ شہزادی سبیلا دکھائی نہیں دے رہی۔ پیچھے پیچھے سبیلا بالن کے ساتھ وہاں داخل ہوتی ہے۔ بالن مالک سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، شہزادی سبیلا یہاں ہے میرے ساتھ، جس صورتحال میں ہم نے آپ کو ڈالا اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ سبیلا کہتی ہے تاہم میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گی، آپ نے ملکہ کی باتوں کے زیر اثر آ کر مجھے ایسی شادی پر مجبور کیا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مالک کہتا ہے تو تم اتنی بہادر ہو کہ اپنے بابا کے خلاف کھڑی ہو رہی ہو، پھر تم بالن کے پاس کیوں گئی؟ بالن کہتا ہے ہم یقیناً آپ کی اجازت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں یہ بات خاص طور پہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا تاکہ میرا ارادہ واضح ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالن سبیلا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماریا کہتی ہے کونت بالن بازنطینی بیری بیڑیا دمیات کے ساحلوں تک پہنچنے والا ہے، ایک ایسی جنگ ہماری دہلیز پر کھڑی ہے جو ہماری تقدیر بدل دے گی اور تم بادشاہ سلامت کو کن باتوں میں الجھا رہے ہو؟ مگر مالک اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے مجھے
مجھے بالن کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ سب چلے جاتے ہیں اور ایمارلیک مسکراتے ہوئے بالن کے پاس کائرہ میں میلا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے آنے والے قاضی فاضل اس سے کہتے ہیں کون میلا، خوشی ہوئی کہ آپ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میلا ان کو شکریہ ادا کرتی ہے تو قاضی فاضل کہتے ہیں آپ ہماری مہمان ہیں، آپ کی جان ہمارے پاس امانت ہے، آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ میلا کہتی ہے وزیر صلاح الدین اگر ممکن ہو تو میں ان سے ملنا چاہوں گی۔ جواباً قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر حضرت ایک مہم پر ہیں، ان کے آنے میں وقت لگ جائے گا۔ یہ سن کر میلا کہتی ہے صلاح الدین کے واپس آنے تک میں بازار جانا چاہوں گی، مجھے محل سے نکلنے کی اجازت ہے نا؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں بالکل، لیکن اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، سب جانتے ہیں کہ آپ کو قاہرہ سے جلاوطن کیا گیا تھا، اگر بازار میں کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو بدنامی پھیل جائے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی میلا آگے بڑھ جاتی ہے اور قاضی فاضل سپاہی سے کہتے ہیں اس پہ نظر رکھو، بازار میں کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی بھی چلا جاتا ہے۔ دمیات میں وزیر صلاح الدین منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے بزوگ سے کہتے ہیں بزوگ سب سے پہلے تیرانداز اگلی صف توڑیں گے، پھر ایکسس حملہ کرے گا، ایک بار جب وہ بکھر جائیں گے تو تم ایکسس کے پیچھے جاؤ گے، اور برو تم جب ایک بار ایکسس سلیبیوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا تو تم اپنے دستے کے ساتھ پیچھے سے حملہ کرو گے۔ کچھ میں ایمارلیک بالن سے کہتا ہے تم میری بیٹی سے اتنا پیار کرتے ہو، میرے یعنی بادشاہ ایمارلیک کے خلاف کھڑے ہو گئے کونت بالن؟ جواب میں بالن کہتا ہے میری یہاں موجودگی آپ کے لیے میرے احترام اور آپ کی بیٹی کے لیے میری محبت کا ثبوت ہے بادشاہ سلامت۔ یہ سن کر ایمارلیک کہتا ہے پھر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، مبارک ہو۔ یہ سن کر بالن خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میں سمجھا نہیں۔ تو ایمارلیک کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے تمہارے جذبات کی جانچ کرنی تھی اور میں نے وہی کیا۔ بالن کہتا ہے پھر لڑ گئے سے اس کی شادی کا مسئلہ؟ تو ایمارلیک کہتا ہے ایک آدمی جو محبت کے لیے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کر لے گا۔ بالن کہتا ہے اس بات میں کوئی شبہ نہ رکھیں۔ تو ایمارلیک کہتا ہے لیکن اب ہمارے سامنے ایک بہت اہم جنگ ہے اور جب میں قاہرہ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میں تمہیں اپنے ساتھ چاہتا ہوں کونت بالن۔ یہ سن کر بالن کہتا ہے یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاتلیون کا کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین کے آدمیوں نے آگے جانے والے بڑے دستے پہ حملہ کیا ہے۔ یہ سن کر چاتلیون اور سنگاریوس کو بہت غصہ آتا ہے۔ چاتلیون پوچھتا ہے کیا وہ بہت زیادہ ہیں؟ تو کمانڈر کہتا ہے نہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مزید آ رہے ہیں یا نہیں۔ سنگاریوس کہتا ہے چلو انہیں پکڑتے ہیں، انہیں جا کر ذبح کر دینا چاہیے، مگر چاتلیون کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ ایک جال بھی ہو سکتا ہے، ہم جلدی نہیں کریں گے۔ پھر کمانڈر سے کہتا ہے ابھی گشت کرنے والا دستہ بھیجو اور معلوم کرواؤ کہ مزید آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمانڈر چلا جاتا ہے۔ کچھ میں بالن جیسے محل سے نکلتا ہے مارکوس اس کے پاس آتا ہے۔ بالن اسے کہتا ہے فوراً سپاہیوں کو تیار کرواؤ، ہم بادشاہ مالک کے ساتھ قاہرہ جائیں گے۔ مارکوس اسے خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ آپ کو قاہرہ سے وزیر صلاح الدین نے بھیجا ہے۔ بالن خط کھول کر پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ایبڈن کے کونت بالن، مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے بادشاہ مالک کے بیٹے پرنس بالڈون کو جزام کی بیماری لگ گئی ہے، اس کی تشخیص کرنے والا اور مجھے اطلاع دینے والا شخص جسے تم بھی قریب سے جانتے ہو حکیم لطیف ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کافی عرصے سے اس بیماری کے علاج کے لیے طریقے ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے وہ جان گیا۔ اگر اس صورتحال کے لیے تم بادشاہ کو مطلع کر دو تو یہ پرنس بالڈون کے لیے بہتر ہوگا۔ خط پڑھنے کے بعد بالن بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے فوج کی تیاریوں کو تم سنبھالو، ایک فوری مسئلہ ہے جو مجھے یہاں سنبھالنا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مارکوس چلا جاتا ہے۔ اندر ہی ایمارلیک لڑ گئے اور ماریا سے کہتا ہے میرے اور بالن کے درمیان آمنے سامنے ہونے والی گفتگو سے مجھے ظاہر ہو گیا ہے کہ سبیلا اور وہ واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ماریا کہتی ہے آپ جیسے عہدے پر موجود شخص کو محبت کی تعریف کرنے کے بجائے ایمارلیک اسے وہیں پہ خاموش کروا دیتا ہے اور کہتا ہے بالکل اس کے برعکس سوچو میری ملکہ، ایک بادشاہ جو حقیقی جذبات کی کیفیت نہ سمجھ پائی اس تخت پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ لڑ گئے مجھے افسوس ہے کہ ہم نے تمہیں جھوٹی امیدیں دلائیں، لیکن کونت بالن اور سبیلا کے جذبات نے مجھے دکھایا ہے کہ یہی صحیح فیصلہ ہے۔ جو ہمیں لڑ گئے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس آپ کے فیصلے کا احترام کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے بادشاہ سلامت، مجھے امید ہے کہ آپ کا فیصلہ قدس اور شہزادی سبیلا کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ ایمارلیک کہتا ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں، اب تمہارا ایک اہم فریضہ ہے، دمیات پر ہماری فوج کی چڑھائی کے بارے میں جیسے ہی سلطان نور الدین کو خبر ہوگی وہ یقینی طور پہ قاہرہ کی مدد کے لیے اپنی فوج کو متحرک کرے گا۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بہترین سپاہیوں کے دستے کے ساتھ اس امداد کو روکو۔ یہ سنتے ساتھ ہی لڑائی چلا جاتا ہے اور ماریا ایمارلیک سے کہتی ہے آپ کا یہ فیصلہ قدس کے مستقبل کے بارے میں ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ ایمارلیک اسے کہتا ہے تخت پر جیسا کہ میں بیٹھا ہوں اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری میری ہوگی، اب اس مسئلے کو مجھ پہ چھوڑ دو۔ دمیات میں وزیر صلاح الدین کے ساتھی ان کے پاس آتے ہیں اور برو کہتا ہے ہم نے بالکل وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، ہم نے کافر کو کاری ضرب لگائی ہے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں اس سے کچھ دیر کے لیے ان کی توجہ ہٹ جائے گی، جب تک دشمن دوبارہ طاقت حاصل کرے گا ہم قاہرہ میں ایک مضبوط دفاع تیار کر چکے ہوں گے۔ عالم اسلام کی سرزمین سے جب تک صلیبیوں کے ناپاک قدم پوری طرح نہ ہٹا دیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب ہم قاہرہ واپس جا رہے ہیں لیکن ہمیں راستے میں کچھ کام نپٹانے ہوں گے۔ ادھر چاتلیون غصے سے کہتا ہے ہمارے فوجیوں کو الجھا کر اس نے کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا۔ تو سنگاریوس کہتا ہے اگر ہم قاہرہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو فوج کو دوبارہ طاقت بحال کرنی ہوگی، ہمیں کچھ کے فوجوں کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ چاتلیون کہتا ہے چرواہے نے ابھی تو فوج کو تتر بتر کروا دیا ہے، لیکن میں اپنی فوج جمع کر کے واپس آؤں گا۔ صلاح الدین شام میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں یہ وقت مصر کے گڑھے کو مٹی میں ملانے کا وقت ہے، کفار متحد ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں مضبوط ہو کر ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، یہ وقت مہم کے لیے تیار ہونے کا وقت ہے، ہماری جدوجہد مبارک ہو۔ عمر ملا سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ یہ معاملہ یا رکی اور اصفہانی پہ چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام فرما لیں۔ مگر سلطان کہتے ہیں عمر ملا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ہمارے قدموں سے پہلے روح سفر کرتی ہے، بعض اوقات جو چاقو نہ کاٹ پائے ہاتھ کاٹ دیتا ہے، میں نہیں رک سکتا، جبکہ صلاح الدین وہاں پھنسا ہوا ہے، میں نہیں رک سکتا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنی روح کے ساتھ اس آخری مہم پہ نکلوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں، اصفہانی اور وزیر عماد ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ عمر ملا یاروکی سے کہتے ہیں سلطان کی سوچ اس دنیا والوں کی سوچ جیسی بالکل نہیں ہے، لہٰذا ان کا ذہن بدلنا ناممکن ہے۔ کچھ میں بالڈون سپاہی کے ساتھ مشق کر رہا ہوتا ہے مگر بالڈون ٹھیک طریقے سے حملہ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے بالن اس کے پاس آتا ہے، بالڈون کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالن آگے بڑھتے ہوئے سپاہی کو بھیج دیتا ہے اور شہزادے سے کہتا ہے برائے کرم تلوار اٹھاؤ۔ بالڈون جیسے اس پہ حملہ کرتا ہے تلوار پھر سے گر جاتی ہے۔ ادھر ولیم سبیلا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ملکہ ماریا کی خواہش تھی کہ آپ لڑ گئے سے شادی کریں، کچھ میں اقتدار حاصل کرنے کی اس کی خواہش ہے۔ سبیلا کہتی ہے مجھے امید ہے کہ بادشاہ سلامتی سے واقف ہوں گے۔ جواباً ولیم کہتا ہے شہزادی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ملکہ ماریا اور لڑ گئے کچھ کے
हकीकी मालिक कौन है इसके बारे में समझ जाएंगे, मुझ पे भरोसा रखें। उधर शहजादे की तलवार गिरने पर बालेन उससे कहता है, प्रिंस बाल्डोन ऐसा लगता है कि आप तकलीफ में हैं। तो बाल्डोन कहता है, मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। बालेन कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक अजीम सुरमा होने का सुनहरी उसूल बताना चाहता हूँ, और वो है दर्द को छुपाना। फिर से तलवार पकड़ें। फिर हाथ आगे करते हुए कहता है, तलवार मेरी हथेली पर दबाएं। शहजादा उसकी हथेली पर तलवार रखकर दबाता है। बालेन को तकलीफ महसूस होती है, इसलिए मैं सबीला विलियम के साथ वहाँ पहुंचती है। बालेन को दर्द में देखकर बाल्डोन तलवार पीछे करते हुए कहता है, आप दर्द में हैं, इसका मतलब है आप अच्छे सुरमा नहीं है। बालेन कहता है, तो फिर आपको देखते हैं। ये कहते साथ वो शहजादे की हथेली पे तलवार रख के दबाता है, मगर उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। ये मंजर देखते हुए बालेन चौंक जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वाकई बाल्डोन को बीमारी है। शहजादा खुश होते हुए उससे कहता है, तुमने देखा कौन बालेन, मैं तुमसे बेहतर सुरमा हूँ। सबीला और विलियम आगे बढ़ते हैं और उनके पास आते हैं। सबीला पूछती है, बालेन यहाँ क्या हो रहा है? तो बाल्डोन कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ बहन, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ। यह सुनते साथ ही सबीला उसे गले लगा लेती है और बालेन सबीला से कहता है, मेरे पास आपके साथ बात करने के लिए एक अहम मामला है। यह सुनकर विलियम भी काफी परेशान दिखाई देता है। कायरा में हम देखते हैं कि मैला अपने चारों छुपाई आगे बढ़ रही होती है। कैसी लम्हे उसका सामना सायरा से होता है। उसे देखकर सायरा एकदम से कहती है, कौन मैला? तो मैला उसे एक तरफ करते हुए अपना चेहरा आया कर देती है और कहती है, जी हाँ, तुम गलत नहीं हो सायरा, ये मैं ही हूँ। सायरा उसे पूछती है, तुम्हारा कायरा में क्या काम है? तो मैला उसे कहती है, तुम्हारे बाबा माइल्स के करीबी दोस्त थे, क्या मैं बरसों की यादगार की खातिर तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? तो सायरा उसे कहती है, जरूर, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। मैला कहती है, मैं वजीर के महल में छुपी हुई हूँ। जब चातियों ने मुझे अपने ही किले में कैद करने की कोशिश की तो मैं सलाउद्दीन से मदद मांगने के लिए आ गई। सायरा उसे कहती है, तुमने कायरा आने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया है। शहर बाज़ंतीनी और कुछ फौजों की जानिब से जल्द मुआवजे के जद में आ जाएगा। मैला एकदम से पूछती है, तुम कैसे जानती हो? तो सायरा कहती है, मैं बाबा के कायम करदा निजाम को जारी रखे हुए हूँ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से कम नहीं होगा। कौन? जवाबन मैला कहती है, तो ऐसा ही हो, मैं मौत समेत किसी भी चीज का खतरा मोल लेकर कायरा आई थी। सायरा पूछती है, क्या कोई वजह है जो आपको यहाँ रहने पर मजबूर करती है और आप मुझे नहीं बता सकती? यह सुनकर मैला सोच में पड़ जाती है। कुछ में माले के सामने सब लोग जमा होते हैं। बालेन उसे कहता है, इज्जत में आप सब हकीम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बदकिस्मती से प्रिंस बाल्डोन जजाम की बीमारी के जेर असर है। यह सुनकर माले गमगीन होते हुए कहता है, क्या क्या कह रहे हो विलियम, इसका क्या मतलब है? तो विलियम परेशान होते हुए कहता है, बदकिस्मती से कौन बालेन, हक बजानी में इज्जत माब, बराए करम पुरस्कून रहे। इमारले कहता है, नहीं, कोई गलती हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मगर विलियम कहता है, कोई गलती नहीं हुई, प्रिंस बाल्डोन को फौरी तौर पे करंटीन में रखा जाए। नाज़रीन, करंटीन का मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना आया था तो उस वक्त होता था, यानी कि सबसे अलग थलग जो बीमारी से मुतासिर हो। इमारले गम और गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अपने बेटे को देखूंगा। इमारले को गुस्से में देखकर विलियम उसके पीछे भागता है। शहजादी सबीला और बालेन भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं। कायरा में मैला सायरा से कहती है, मेरे यहाँ रहने की वजह शमसा है, मैं कायरा नहीं छोड़ूंगी इससे पहले कि मैं उसे उसकी कीमत अदा करूं जो उसने मेरे साथ किया। सायरा से कहती है, मगर आपकी बातें उलझ रही हैं। जब आप अपने शोहर के कातिल से बुग़्ज़ रखती थी, क्या बदला के उसके महल में पनाह ले ली? और इसके अलावा आप सलाउद्दीन से नहीं, उसकी होने वाली बीवी से इंतकाम लेने का कह रही हैं। मैला पूछती है, तुम इतनी हैरान क्यों हो? क्या मुराद ले रही हो तुम? जवाब में सायरा कहती है, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो चीज अहम है वो आपकी हिफाजत है। मेरी तंबी सुने और कायरा से निकल जाएं। जवाब में मैला कहती है, फिक्र ना करो, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं और अपना बदला ले सकूं। ये कहते साथ ही मैला चारा ढांपते। जंगल में कुएं से पानी ना मिलने पर चातियों गुस्से से कहता है, खुदावंद की लानत हो। सिंगारियोस से कहता है, हमने जितने भी कुएं देखे वो या तो ज़रालूद हैं या बंद हैं, या कुआं पत्थरों से भरा होता है। हम देखते हैं कि ये कुआं भी पत्थरों से भरा हुआ दिखाई देता है। सिंगारियोस मजीद कहता है, मैं अब ये भी नहीं समझ पा रहा कि बादशाह मालिक ने फौज की रवानगी में इतनी ताखिर क्यों की। हमें कुछ करना होगा चातलियन, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो चातलियन कहता है, मैं जानता हूँ ताजिर आकिफ की बेटी सायरा हमारे लिए अब वाहिद मौका वो है। कुछ में बाल्डोन बैठा कुछ लिख रहा होता है, इसलिए मैं इमाम लेक तेजी से उसके पास आता है। इमाम लेक को हवास पाख्ता देखकर बाल्डोन पूछता है, बाबा क्या कुछ हुआ है? तो इमाम लेक उसके पास बैठते हुए कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारे लिए मैं फिक्रमंद हूँ तो इसलिए आया हूँ। बाल्डोन कहता है, मुझे बहन ने बताया है, मुझे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी थकावट महसूस कर रहा हूँ बस। इमाम लेक उसे प्यार करते हुए कहता है, बेटे कौन बालेन ने तुम्हारे किसी दर्द को महसूस ना करने वाले सुरमा के बारे में बताया है, क्या ये सच है? तो बाल्डोन कहता है, जी हाँ, मैं भी आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये कहते साथ वो अपना हाथ जलाता है मगर उसे तकलीफ महसूस नहीं होती। ये देखकर इमाम लेक की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। बाल्डोन उसे कहता है, देखा आपने, देखा, मुझे तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। इमाम लेक गमगीन होते हुए उसका हाथ पकड़ता है तो बाल्डोन पूछता है, क्या हुआ बाबा? तो इमाम लेक बात पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, तुम पढ़ना जारी रखो। ये कहते साथ इमाम लेक गमगीन होते हुए चला जाता है। कायदा में वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और खलील से कहते हैं, सबसे कहो कि बंदरगाह के लिए तैयार हो जाएं, हम बात करेंगे कि दिफा के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए में ताजिर वहाँ आते हैं और एक ताजिर कहता है, मोहतरम वजीर साहब, बाज़ंतीनी फौज दमियात से उतर रही है, क्या ये सच है? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुमने जो कुछ सुना ठीक सुना, आप अपने मामलात को रोककर तैयारियों में शरीक होंगे। तो ताजिर कहता है, हम लड़ाई के बारे में जानते ही क्या है वजीर। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम्हें किसी ने तलवार चलाने को नहीं कहा, तुम पानी पहुंचाओगे, खाना पहुंचाओगे। तो ताजिर कहते हैं, फातिमा और बाज़ंतीनी आपस में अच्छी तरह मिलते थे, अब हमारे ऊपर क्या मुसल्लत हो गया है। वजीर सलाउद्दीन गुस्से से कहते हैं, फातिमा रियासत ने तहादियों को दुश्मनों के साथ उलझाने की कीमत अदा की, अब वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन दरवाजे पर हैं, ये वक्त मुत्तहिद होने का है। इस्लामी सरजमीन को दुश्मन की जानिब से रोंदने की इजाजत नहीं देंगे, अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करे। ये सुनते साथ ही ताजिर चले जाते हैं। वजीर सलाउद्दीन बेबोरा से कहते हैं, बच्चों और खवातीन के लिए पनागाहें तैयार करो, ऐसे खलीफा के महल में मौजूद सिपाहियों को फौज में शामिल करो, जो भी तलवार और कमान पकड़ सकता है लड़ाई में शामिल होगा। ये सुनते साथ ही सिपाही अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे चल पड़ते हैं। इसलिए में मैला वहाँ पे आती है और वजीर सलाउद्दीन से कहती है, ये बहुत अफसोसनाक है कि मेरी आमद जंग के मौके पे हुई। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये एक इत्तफाक है, लेकिन कौन चातियों फौज की क़यादत कर रहा है। जवाब में मैला कहती है, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मैंने उसे तमाम रास्ते मुनक़ता कर दिए हैं, मैंने बमुश्किल उसके हाथों अपनी जान बचाई, आपसे पनाह मांगना मेरा वाहिद रास्ता था। मोहतरम वज़ीर कौन चातियों मुझे? वज़ीर सलाउद्दीन उसकी बात करते हुए कहते हैं, हम उन लोगों को हवाले नहीं करते जो अपनी मर्जी से हमारे पास पनाह मांगते हैं,
फिक्र मत करो। मैला उनसे कहती है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं नहीं जानती, लेकिन अगर चीजें मुश्किल हो जाती हैं कम से कम आप मुझे उनके खिलाफ तरफ के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कैरिक की फौज को वापस भेजा जा सके। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, हरगिज नहीं, हमें उनके साथ ना मिलाओ। हम औरत को दुश्मन के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तुम अपनी मर्जी से किसी भी जगह जाने के लिए आजाद हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम हमारी हिफाजत में होगी। इदरीस कौंस मैला के साथ महल के दरवाजे तक जाओ। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ जाते हैं और मैला उन्हें मुसलसल देख रही होती है। कुछ में हकीकत जानने के बाद जैसे इमारलेक पे गम के बादल टूट पड़े हों। धुंधलाती आंखें, बोझल कदम, वो आगे बढ़ते हुए कहता है, खुदावंद क्यों? वो घुटनों के बल गिर जाता है और फिर पूछता है, क्यों? इसलिए में सबीला बालेन और विलियम के साथ वहाँ पहुंचती है और इमारलेक को इस तरह से देखकर एकदम से उसे सहारा देती है। इमारलेक कहता है, फौरन तमाम हकीमों को जमा करो, मैं दुनिया के तमाम हकीम यहाँ लाऊंगा, सबको। कायरा में सायरा आगे बढ़ रही होती है कि ताजिर आसिफ उसे आवाज देकर एक तरफ बुला लेता है। वो उसे पूछती है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? तो आसिफ कहता है, कैरिक के कौन चाहते से खबर आई है, वो सलाउद्दीन के सिपाहियों से लड़ चुके हैं। वजीर ने रास्ते के तमाम कुएं भी बंद करवा दिए हैं। सायरा कहती है, ठीक है, तुम पानी का सामान तैयार करो, हमें उन्हें पहुंचाना है। आसिफ कहता है, वजीर ने अपनी तैयारी कर ली होगी, हम कैसे पहुंचाएंगे? सायरा कहती है, जैसा मैंने कहा वैसा करो। यह सुनते साथ ही आसिफ चला जाता है। दूसरी तरफ एक कमरे में मौजूद एलिसा के सिपाही उससे पूछता है, अब हम क्या करेंगे जनाब? हम बमुश्किल कुछ से बच निकले हैं, लेकिन अगर वजीर सलाउद्दीन हमें कायरा से भी निकाल देता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एलिसा कहता है, बस बहुत हो गया, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसका आदमी कहता है, काश हमने सलाउद्दीन और बालेन को पहले ना पकड़ा होता। एक वजीर बन गया, दूसरा कौंत, और हम दोनों के दरमियान फंस गए हैं। इसलिए में बोरो अपने साथियों के साथ वहाँ आता है और कहता है, आप कहाँ फंसे हैं जरा बताएं तो। उसे देखते हुए एलिसा कहता है, अब तो तमाम मसाइल खत्म हो चुके हैं, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, हम अभी महल तुम्हारे भाई के पास जाने वाले थे। बोरो कहता है, क्या तुम्हारे पास रमला जैसी एक और धोखे पे मबनी मनगढ़ंत खबर है? तो एलिसा कहता है, कौन बालेन को एहसास हुआ कि मैंने शादी में तुम्हारा साथ दिया था, मैं बेनकाब हो चुका हूँ। उसने जानकर रमला में खेल तरतीब दिया कि मैं तुम्हें इतला दूं। बोरो कहता है, हम कैसे जानते हैं कि आप दोनों फरीकों के लिए काम नहीं कर रहे? तो एलिसा कहता है, हम बमुश्किल कुछ से बच निकले, अब हमारे पास कायरा के अलावा जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैंने वही किया जो वजीर सलाउद्दीन ने मुझे करने को कहा था, मैंने अपनी बात पूरी की, उन्होंने भी मुझसे वादा किया था। जवाबन बोरो कहता है, उन्होंने अगर तुमसे कोई वादा किया है तो उसे पूरा करेंगे, मैं तुम्हें कायरा में दाखिल होने की इजाजत दूंगा और तुम्हें एक खास काम भी दूंगा। एलिसा कहता है, खुशी से बताएं बताएं, मगर बोरो कहता है, अभी नहीं, मेरी खबर का इंतजार करो। एलिसा एक बात बताओ, क्या तुमने उन गुलामों के ताजरों के बारे में सुना है जिन्हें मैंने कत्ल किया था? एलिसा के हाँ में सरे लाने पर वो मजीद कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम जैसा हो तो मुझे धोखा देने की कोशिश ना करना। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। कुछ में हकीम बाल्डोन के जिस्म पे दवा लगा रहा होता है तो बाल्डोन कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे इससे बू आ रही है। तो सबीला उसे कहती है, बराए मेहरबानी पुरस्कून हो जाओ बाल्डोन। विलियम कहता है, ये आपकी भलाई के लिए है। तो बाल्डोन कहता है, मुझे कुछ नहीं है। इमारलेक के इशारे पर एक हकीम उसके पास आता है। इमारलेक उससे पूछता है, हालत कैसी है इसकी? ये अभी इब्तदाई मराहिल में है ना? तो हकीम कहता है, बदकिस्मती से ये बीमारी। इमारलेक आगे सुनने से पहले ही उसकी बात काट देता है और उससे कहता है, क्या तुम सारे तरीके आजमा रहे हो ना? हकीम कहता है, इज्जत माब, हमारे मालूम इलाज के तरीके महदूद हैं। इस मौजू के ज्यादातर माहिर बगदाद या कायरा में हैं। मुसलमान हकीम, हमारे करने के लिए कुछ नहीं है। इमारलेक गुस्से से कहता है, होना चाहिए, करने के लिए कुछ होना चाहिए। यह सुनकर बालेन उसके पास आता है और कहता है, करने के लिए कुछ है। इस पर इमारलेक सुख का सांस लेता है। कायदा में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, हम दमियात को बचा नहीं सके लेकिन हमने उन्हें सुस्त कर दिया है। अब हमारे पास शहर को महफूज करने के सिवा कोई चारा नहीं है। बज़ोक, दीवारों की क्या हालत है? बज़ोक कहता है, मेरे वजीर सबसे कमजोर हिस्सा शिमाल की तरफ है, बगावत से एक बड़ी खिलाफवर्जी बाकी है, उस दीवार को मुकम्मल नहीं किया गया क्योंकि उसकी मरम्मत मुश्किल है। एसिस कहते हैं, हमने तामीर शुरू कर दी है लेकिन मुहस्सिस से पहले उसे मुकम्मल करना नामुमकिन है। फिर वजीर सलाउद्दीन करातेगन से पूछते हैं, करातेगन, तुमने कहा कि एक तरीका है, वो क्या है? तो करातेगन कहता है, तरीका है मेरे वजीर, खंदक खोद देंगे। ये हमारे बोरो कबीले के जाल का एक तरीका है। हम टूटी हुई दीवार के सामने एक गहरी खंदक खोदेंगे, हम उसका अहाता करेंगे, फिर हम उस पर मट्टी के 2 तह डालेंगे। दूर से ही एक रास्ता नजर आएगा, लेकिन जब दुश्मन दीवार की जानिब बढ़ेंगे तो खंदक में गिर जाएंगे। हमने ऐसे बहुत से दुश्मनों का शिकार किया है। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, दीवार के सामने गहरी खंदक खोदना शुरू करें। हम कोशिश करते हैं और कामयाबी अल्लाह देता है। अगर हम इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं तो दुश्मन हमारी सरजमीन पर कभी कदम नहीं रख पाएंगे। कुछ में आगे बढ़ते हुए बालेन इमारलेक से कहता है, सलाउद्दीन ने अपने खत में लिखा है कि उसके हकीम ने, जिसे मैं भी जानता हूँ, उसने जजाम के लिए एक खास तरीका तैयार किया है जिसे दूसरे हकीम नहीं जानते। अगर आप उस लतीफ की दरख्वास्त करते हैं तो वो आपकी दरख्वास्त को नजरअंदाज नहीं करेगा। इमारलेक गुस्से से कहता है, बालेन ऐसा ना कहो, क्या तुम्हें ये मशकूक नहीं लगता? वो अब ये खबर क्यों दे रहा है? वो वाज़ेह तौर पर उसे फायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मगर बालेन कहता है, हम मैदान जंग में सलाउद्दीन के दुश्मन हैं, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, मुझे यकीन है कि वो एक मासूम बच्चे की जिंदगी को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। मगर इमारलेक कहता है, मुझे दुख हुआ बालेन, तुम अब भी सलाउद्दीन को अपना दोस्त समझते हो। सलाउद्दीन क्यों एक ऐसे शहजादे को जो कि मुस्तकबिल का बादशाह है और उसके खिलाफ लड़ेगा, उसकी जिंदगी की तरफ वापस लाएगा? क्यों? ये बात सबको मालूम है कि इस्लामी दुनिया के हकीम हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन मैं सलाउद्दीन से हकीम की भीख नहीं मांगूंगा, मैं जाकर खुद किसी को ले आऊंगा। कायरा में शमसा फातिमा खातून के साथ आगे बढ़ रही होती है। जमशेद के कहने पर वो ताजिर शमसा खातून से माफी मांगते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें उठाई थी। वो माफी मांगते हैं और साथ में शादी की मुबारकबाद भी देते हैं। उनके जाने के बाद सायरा वहाँ आती है और शमसा खातून को शादी की मुबारकबाद देती है। फातिमा खातून सायरा का तारुफ पूछती है तो वो कहती है, मेरा नाम सायरा है, मैं ताजिर आकिफ की बेटी हूँ। उसे देखते हुए शमसा उस लम्हे को याद करती है जब वो खलीफा के लिए दुआ लेकर जा रही थी और शमसा ने उसे दवा वापस ले ली थी। नाम भी पूछा था मगर सायरा ने नाम नहीं बताया था। इस ख्याल के बाद शमसा उसे देखने लग जाती है और सायरा इजाजत लेकर चली जाती है और शमसा फातिमा खातून से कहती है, वो किसी ऐसे शख्स की तरह लग रही थी जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। इसके साथ ही वो दोनों भी आगे बढ़ जाती हैं। सायरा सीधी ताजिर आसिफ के पास आती है तो आसिफ उससे कहता है, पानी के बैरल आपके हुक्म के मुताबिक भर दिए हैं। यह सुनकर सायरा कहती है, बेहतरीन, अब मेरी बात गौर से सुनो। कुछ में बाल्डोन बिस्तर पे लेटा होता है और वो बेचैन होते हुए उठ के आगे बढ़ता है। साथ में कहता है, मैं कहता रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं समझते। विलियम उसी की तरफ आ रहा होता है कि उसका सामना इमारलेक से होता है। इमारलेक उससे पूछता है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या तुमने सारे हकीम
बुला लिए? तो विलियम कहता है, महाराज मैंने सबको बुलाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमें उम्मीद नहीं दी। वो सब एक ही राय रखते हैं। आगे बढ़ते हुए बाल्डोन उनकी बातें सुनते साथ ही रुक जाता है। इमाले गमगीन होते हुए कहता है, मुझे कुछ करना होगा विलियम, मैं सिर्फ खड़े होकर अपने बेटे को नहीं देख सकता। विलियम कहता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि जजाम का मर्ज लाइलाज है, लेकिन हमें इसे कबूल करना होगा। यह सुनकर बाल्डोन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस लम्हे को याद करता है जब जजाम यानी कि कोड़ के मरीजों को घोड़ा गाड़ियों में बंद करके ले जाया जा रहा था और सबीला ने उसे जजाम के बारे में बताया था। इस ख्याल के बाद बाल्डोन शदीद परेशान होते हुए पीछे हटता है तो मशल गिर जाती है। यह आवाज सुनकर विलियम और इमालेक तेजी से कमरे में दाखिल होते हैं। इमालेक उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे? तो बाल्डोन कहता है, करीब मत आए, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सुन लिया है, मुझे जजाम है, दूर रहें ताकि आप इसमें मुब्तला ना हो जाएं। ये कहते साथ ही बाल्डोन रोने लग जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। साथ कहता है, मुझे जजाम है, मुझे एक घोड़ा गाड़ी में ले जाकर महल से बाहर फेंक दिया जाएगा। यह सुनकर इमालेक और विलियम बहुत गमगीन हो जाते हैं। बाल्डोन मजीद कहता है, बाबा मुझे डर लग रहा है। यह सुनते साथ ही इमालेक आगे बढ़ता है और उसे सीने से लगा लेता है। फिर उसे प्यार करते हुए कहता है, मेरे बेटे डरो नहीं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल ना डरो, तुम ठीक हो जाओगे। उन तीनों की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। इमालेक रोते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ कि तुम कायरा में वज़ीर सलाउद्दीन शमसा खातून से पूछते हैं तैयारियां कैसी जा रही हैं, क्या तुम्हें महल की आदत हो गई है? जवाबन शमसा खातून कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कांटों पे चल रही हूँ। गुलज़ारा के कातिल के साथ एक ही छत के नीचे रात गुजारना मुझे तकलीफ देता है। कुछ में इमालेक बहुत गमगीन खड़ा होता है। मारियो से कहती है, कमांडर संगारियोस की तरफ से आने वाली खबरें बहुत अहम हैं, उन्हें दमियात में छोटी सी मुजामत के अलावा कोई परेशानी नहीं हुई, वो जल्दी कायरा पहुंच जाएंगे। कुछ की फौज भी कल रवाना हो जाएगी और वो बजंतनी फौज में शामिल हो जाएंगे। फौज हरकत के लिए तैयार है। बेटे के गम में मुब्तला इमालेक आहिस्तगी से कहता है, हाँ अच्छा, तो फौज तैयार है। ये देखकर मारिया आगे बढ़ती है और उसे हौसला देते हुए कहती है, ये कुछ की बादशाहत और आपके लिए एक मौका है, अगर आप कायरा पर कब्जा कर लेंगे तो आप तारीख रकम कर देंगे। इमालेक कहता है, दर हकीकत मैं अभी सिर्फ एक बाप हूँ जो अपने बेटे की बीमारी का इलाज तलाश कर रहा है। जवाब में मारिया कहती है, हम सब प्रिंस बाल्डोन के लिए परेशान हैं, ताहम बादशाह होने के नाते मुश्किल तरीन वक्त में भी मजबूत होना पड़ता है। बादशाह इमालेक खुदावंद बाल्डोन के लिए मौजूद है, आपको जो करना है वो फौज की क़यादत है और जंग जीतें। इमालेक कोई भी जवाब नहीं देता। कायरा में वज़ीर सलाउद्दीन शमसा खातून से कहते हैं, शमसा कौन स्मैला ने अपने शोहर के जुल्म से बचने के लिए हमारे पास बना ली है, मैं उसे वापस कैसे भेज सकता हूँ? तो शमसा खातून कहती है, सलाउद्दीन वो एक खतरनाक औरत है, उसका फरार उसे बेकसूर नहीं बनाता। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, वो खेल खेलने से कासिर है। मगर शमसा खातून कहती है, ज़ाहिर है उसने तुम्हें अपने जाली आंसू से धोखा दिया। तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ शमसा, वो कह रहे कि कौन से, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब क्या है। शमसा खातून कहती है, दुआ है कि तुम्हें जल्द ये मालूम हो जाए। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, अपने आप को इस मामले से परेशान ना करो, हमें अब जिस चीज का ख्याल रखना है वो कायरा की सलामती है, फिर हमारा ही खानदान होगा और हम खुशियों की तरफ पलट जाएंगे और सिर्फ एक ही चीज हमारी ख्वाहिश को मुकम्मल करेगी, वो है कुछ। सुबह के वक्त सायरा सिपाहियों के साथ कुछ सामान लेकर कायरा से निकल रही होती है, मगर इसलिए में बोरो का रास्ता रोक लेता है। सायरा के सिपाही आगे बढ़ते हैं तो सायरा ने रोक देती है और बोरो के पास आकर कहती है, क्या तुम तिजारती काफिलों पर कब्जा करके कायरा का दिफा करोगे? जवाब में बोरो कहता है, नहीं, तिजारत के बेस में दुश्मन के साथ ताउन करने वालों की इमदाद को रोक कर दिफा करूंगा। सायरा कहती है, इमदाद? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बोरो गुस्से से कहता है, फिर क्या लेकर जा रही हो और किसके लिए? सायरा कहती है, अगर तुम इतने मुतजस्सिस हो तो इसे देख सकते हो। बोरो के इशारे पर सिपाही तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। बोरो कहता है, दुआ करो कि इसमें पानी ना हो। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी तो चात्योन तक पहुंच चुका होता है और ये पानी पहुंचाने वाला ताजिर आसिफ होता है। पानी मुंह पे फेंकते हुए चात्योन कहता है, आखिरकार हमें पानी मिल गया। तो आसिफ कहता है, सायरा खातून ने सलाम भेजा है। इधर बोरो एक ड्रम की जांच करता है तो उसमें जैतून का तेल होता है। सायरा उसे कहती है, मालूम होगा कि ये फौज के लिए मुफीद नहीं है ना? बोरो कहता है, सायरा तुम गलत रास्ते पे हो, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना करो। तो सायरा कहती है, जब मैंने तुम्हें कहा था क्या तुम रुक गए? अब मुझसे कैसे रुकने की तवक्को कर सकते हो? बोरो कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे बाबा ने खुद मौत को दावत दी थी। सायरा कहती है, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर काटूं, मैं तुम्हारे दोस्तों की आंखों में देख कर यही बोलूंगी। बोरो यह सुनकर बोरो गुस्से से कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ है? सायरा कहती है, झूठ नहीं बोल रही, मैं जानती हूँ कि क्राकोश और बोरो कहाँ है। वो जाने लगती है कि बोरो चिल्लाते हुए उसे बुलाता है। सायरा भी गुस्से में उसे देखने लग जाती है। कुछ में इमालेक जंग के लिए तैयार होता है। मारियो से कहती है, महाराज अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके साथ कायरा जाना चाहूंगी। इमालेक उसे कहता है, मलका मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा, मैं फौज की क़यादत करूंगा, बालेन विलियम और लड़काई मेरे साथ होंगे। मारिया कहती है, आपकी मौजूदगी फतह दिलाने के लिए काफी है, लेकिन बजंतनी सिपाही जो कमांडर संगारियोस के हुक्म के मातहत हैं और दमियात से आ रहे हैं, वो जब मैदानी जंग में मुझे देखेंगे तो वो बुलंद हौसले के साथ वही करेंगे जो उनकी वफादारी के लिए जरूरी है। इमालेक के जवाब देने से पहले विलियम आकर कहता है, महाराज फौज तैयार है। ये कहते हैं सुनते साथ ही वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। कायरा में दिफा को मजबूत किया जा रहा होता है। वज़ीर सलाउद्दीन बज़ोक से कहते हैं, बज़ोक ये वो जगह है जहाँ प्यादे खड़े होंगे, अपने तिरंदाजों को दूसरी तरफ खड़ा करो। बज़ोक के जाने के बाद बोरो वहाँ आता है और कहता है, बाज़ंतीनी फौज की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन कुछ की फौज आगे बढ़ रही है, वो मिलकर जल्दी शहर के दरवाजे पे हमला करेंगे। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, हालात यकीनी तौर पे बदल जाएंगे, अगर हम बच गए तो हमें कुछ के दरवाजे पे हमला करने में देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ चात्योन भी कमांडर और गद्दार आसिफ के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। चात्योन का मंसूबा सुनकर आसिफ कहता है, मैं एक चीज के बारे में मुतजस्सिस हूं चात्योन। चात्योन पूछता है, क्या? तो आसिफ कहता है, क्या कौन स्मैला की कायरा में मौजूदगी आपके मंसूबे का हिस्सा है? यह सुनकर चात्योन चौंक जाता है और पूछता है, क्या? मैं समझा नहीं, क्या मैला कायरा में है? तो आसिफ कहता है, क्या ये आपको नहीं मालूम था? यह सुनकर चात्योन को बहुत गुस्सा आता है। वक्त तेजी के साथ गुजरता है और काला तेगन अपने साथियों के साथ कायरा की बुलंदी पर आता है और सिपाहियों से कहता है, अपनी कुमाने निकालो और होशियार रहो, मजीद तीर ले आओ। जब तुम तीर चलाओ तो हदफ निशाने पे लगे, वरना मैं तुम्हें दीवारों से फेंक दूंगा। हरकत करो, फौरन हरकत करो। ये कहते साथ वो सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक तूफान नुमा लश्कर उनके सामने होता है। बाज़ंतीनी झंडे लहरा रहे होते हैं। नाकाबिले यकीन लश्कर देखकर कर्तगन आहिस्तगी से कहता है, अल्बेस वो आ रहे हैं, अल्बेस बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, चलते फिरते मुर्दे। क्या गोग टेंगरी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया है? ये किस तरह की फौज है? अल्बेस कहता है, ये फौज नहीं है, ये एक इंसानी सैलाब
नायाब है। फौज को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख कर करतगिन भाग पड़ता है। अंदर से वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं और काजी फाजल से पूछते हैं, खवातीन कैसी हैं काजी फाजल? तो काजी फाजल कहते हैं, वो सब महल की पनाहगाह में महफूज है मेरे वजीर, सिवाय शमसा खातून के। इसलिए मैं वो शमसा खातून के पास पहुंचते हैं। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, तुम पनाहगाह में क्यों नहीं हो? तो शमसा खातून कहती है, आपको इसकी आदत हो सकती है, लेकिन ये पहला मौका है जब मैं अपने होने वाले शोहर को जंग में भेज रही हूँ। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, पहली बार मैं अपनी वापसी के इंतजार में किसी को पीछे छोड़ रहा हूँ। शमसा खातून कहती है, मैं खुदाई कलाम सुनकर यहाँ आई हूँ। वजीर सलाउद्दीन खुश होते हुए कहते हैं, मुझे इस बारे में बताएं। काजी फाजल के इशारे पर शमसा खातून कहती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन खुश होते हुए कहते हैं, आपकी ज़बान से यह हकीकत सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप? तो शमसा खातून कहती है, जैसे उस गाने में जिसने हमें मिलवाया था, मेरी आंखें खुश के कुछ। ये कहते साथ वो समय को याद करती हैं जब कुछ में लड़ाई रोकने के लिए वो पहली बार वजीर सलाउद्दीन के सामने आई थी और उन्होंने ये गाना गाया था। इस ख्याल के बाद वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जिसने हमारे दिलों को एक ही मकसद के लिए जोड़ दिया, उस रब का शुक्र है। शमसा कहती है, मैं दिल से मानती हूँ कि आज एक अजीम फतह का पहला कदम होगा सलाउद्दीन, इसलिए मैं करतगिन वजीर वजीर पुकारता वहाँ पहुँचता है और कहता है, मुहासा करने वाली फौज करीब आ गई है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी फौज नहीं देखी। वो याजूज माजूज की तरह मैदान में उतर आए हैं। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से कम तादाद वाले शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। करतगिन कहता है, काश ये वाहिद मसला होता। बज़ुर्ग कहता है, शाम की फौज ने हमला कर दिया है मेरे वजीर, इससे बड़ी बात यह है कि हमारे सुल्तान मैदानी जंग में गिर गए हैं। यह सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, सुल्तान अभी कैसे हैं? तो बज़ुर्ग कहता है, वो ठीक नहीं है। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, खिज़र सिर्फ मुश्किल वक्त में आता है, अल्लाह हमारी और हमारे सुल्तान की मदद फरमाए। यह सुनकर सब आमीन कहते हैं। फिर वजीर सलाउद्दीन काजी फाजल से कहते हैं, लतीफ से कहो कि वो शाम रवानगी के लिए तैयार हो जाए, जंग का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर खेमे में सुल्तान का इलाज चल रहा होता है। यारों की तबीब से पूछता है, हालत कैसी है इनकी? तो तबीब कहता है, इन्हें फौरी तौर पर शाम वापस ले जाना होगा, यहाँ इनका इलाज नामुमकिन है। ये कहते साथ ही हकीम चला जाता है। सब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं और रसवानी पूछते हैं, अब क्या होगा? यारुखी कहता है, हम अपने सुल्तान की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हमें वापस जाना चाहिए। उधर इमालेक चाफियों तक जा पहुंचता है। लाड़काई से कहता है, इज्जत माप जैसे आपने हुक्म दिया था, हम मदद के लिए शाम से कायदा भेजी गई जंगी फौज को पीछे हटाने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मैदानी जंग में गिर पड़ा है। इमालेक पूछता है, क्या तुमने उसे मार दिया? तो लाड़काई कहता है, मैंने ये खुदा पे छोड़ दिया, हमारी तलवारों के तसादुम से पहले ही कुछ हुआ था, मुझे लगता है कि वो बीमार है और ऐसा लगता है कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। चाफियों कहता है, जनाब बाज़ंतनी फौज जो दमियात पर उतरी थी, सिर्फ चंद आदमी को खोकर वो कायदा पहुंचने में कामयाब हो गई है, सिपाही पुरजोश हैं। तो मारिया कहती है, हमें फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए। इमालेक कहता है, मैं पहले वजीर सलाउद्दीन से जाती तौर पर बात करूंगा, मैं उसे शहर हवाले करने का कहूंगा। लाड़काई कहता है, इज्जत माप वजीर सलाउद्दीन कभी नहीं मानेगा। तो इमालेक कहता है, वो जानता है कि शहर मुजामत नहीं कर सकता, एक भी सिपाही को खोए बगैर कायदा में दाखिल होने का मौका है, अगर उसे कबूल ना किया तो ये उस पर मुनसिर है। बालेन विलियम मेरे साथ चलो। ये कहते साथ ही वो उन दोनों के साथ निकल जाता है। चाफियोन भी इजाजत लेकर चला जाता है। मारिया इमालेक से कहती है, बादशाह अपना वक्त जाया करने के लिए पुरज़म दिखाई देता है। तो लाड़काई कहता है, मेरी मलका, बादशाह उलझन का शिकार रखता है, काश कि मैं गलत साबित हूँ। उधर वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ कायदा की बुलंदी पर आते हैं और सामने मौजूद बड़ी फौज को देखने लग जाते हैं। इमालेक अपने साथियों सिपाहियों के साथ उनकी जानिब आ रहा होता है। उन्हें देखकर बोरो कहता है, बादशाह आ रहा है, ज़ाहिर है कि वो हमसे हथियार डालने को कहेगा। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, हम हरगिज़ नहीं जान सकते, उसका इरादा कोई और भी हो सकता है, आइए बात करते हैं, देख लेंगे वो क्या चाहता है। इमालेक दरवाजे के बाहर आ पहुंचता है। बोरो वजीर सलाउद्दीन से कहता है, भाई आपको लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन फौज भेजेगा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो ना आए तो क्या होगा? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जो हो गया सो हो गया बोरो, और जो होगा देखा जाएगा। ये कहते साथ वो इमालेक से मिलने के लिए आगे कायदा के करीब मारिया लाड़काई से कहती है, आप बादशाह के लिए अपने खदशात के बारे में दुरुस्त हैं लाड़काई? लाड़काई पूछता है, उनकी उलझन की वजह क्या है? तो मारिया कहती है, जब आप यरूशलेम से बाहर थे तो हमें मालूम हुआ कि शहजादे बाल्डोन को जिज़ाम की बीमारी हो गई है। लाड़काई चौंक जाता है और पूछता है, कैसे, किसने तशखीस की? मारिया कहती है, तमाम तबीबों ने, करने को कुछ नहीं है, हालांकि कायदा अब हमारे हाथ में है और शहर पर कब्जा करने से रोकने की एक गलती भी नाकाबिले कबूल होगी। लाड़काई पूछता है, यहाँ तक कि अगर बादशाह खुद ही वो गलती करे तो? इस्लामिक कमांडर संगारियोस वहाँ आता है और मारिया को देखकर कहता है, आपको यहाँ देखना बड़े एजाज की बात है। मारिया से कहती है, मुझे उम्मीद है कि आपके सिपाही अच्छी हालत में होंगे। तो संगारियोस कहता है, वो बहुत पुरजोश हैं कि आप यहाँ हैं, हमें रास्ते में प्यास की तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन एक ताजिर लड़की की मदद से। मारिया पूछती है, सायरा? तो संगारियोस कहता है, हाँ सायरा, उसकी मदद से हम इस पर काबू पा गए, लेकिन उसकी एक खास दरख्वास्त है, उसके बाबा के कातिल सलाउद्दीन के भाई बोरो को हम पकड़ेंगे, वो भी जिंदा। यह सुनकर मारिया लाड़काई से कहती है, आपने सुन लिया होगा, मैं सलाउद्दीन के भाई बोरो को जिंदा चाहती हूँ। तो लाड़काई कहता है, मेरा भी उसके साथ एक गैर तयशुदा मामला है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इधर कायदा का दरवाजा खुलता है और वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ इमालेक के पास आते हैं। उन्हें देखकर इमालेक घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, बादशाह इमालेक, बज़ाहिर आपके मौरखीन आपकी शिकस्तों को दर्ज नहीं करते, जब ही आपने अपनी फौज जमा की और यहाँ आ गए, आप भूल गए होंगे कि बाबाइन में क्या हुआ था। इमालेक कहता है, मैं बाबाइन को, हरीम को, हत्ता कि मेरी शादी का दिन कुछ भी नहीं भूला, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं भूला नहीं हूँ। ये फौज आपसे पहले, बाज़ंतनी फौज, सुरमा और कुछ की बादशाही की कीमती दस्ते सब एक साथ हैं, अगर ये फौज हरकत में आई तो कायदा में सब कुछ तबाह हो जाएगा। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, बादशाह इमालेक, जंग धोखे के सिवा कुछ नहीं है, तुम धोखे से दमियात पहुंच गए और तुम इस तरह यहाँ आ गए, लेकिन अब से तुम्हारी किस्मत गैर यकीनी है, क्योंकि अगरचे तुम्हारी फौज हथियारों और तलवारों में ताकत रखती है, लेकिन इनके पास वो दिल नहीं है जो इन्हें हिदायत और ताकत फराहम करे। मेरी राय में तुम लोग पीछे मुड़कर देखे बगैर दोबारा भाग जाओगे। इमालेक कहता है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वजीर सलाउद्दीन, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं जो चीज चाहता हूँ वो मिस्र नहीं है, और मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं जो चाहूँ उसे ले ना लूं। यह सुनकर बालेन वजीर सलाउद्दीन से कहता है, मैंने बादशाह इमालेक को शहजादे बाल्डोन के बारे में आपकी भेजी हुई खबर बताई है। बालेन के बोलने पर इमालेक गुस्से में उसे पुकारता है, मगर बालेन कहता है, इज्जत माप मुझे इजाजत दें। बालेन मजीद कहता है, शहजादे बाल्डोन को इलाज के लिए तमाम मशरकी तबीबों, खास करके तबीब लतीफ की जरूरत है। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, क्या वो
वो तबीब लतीफ है जिसके बगैर आप वापस नहीं जाएंगे मोहतरम इमारलेक? क्या इसीलिए आप इस रास्ते पर आई हैं? खलील लतीफ से कहो कि तैयार होके आई। ये सुनते साथ ही खलील चला जाता है और बालिन इमारलेक से कहता है, मैंने आपसे कहा था सलाउद्दीन इतना मोतबर है कि इतने नाजुक मामले को बातचीत का मौजू नहीं बना सकता। यह सुनकर इमारलेक वजीर सलाउद्दीन से पूछता है, क्या आप वाकई बदले में किसी चीज की तुक्को किए बगैर लतीफ को हमारे साथ जाने देंगे, खास तौर पर जबकि सुल्तान नूरुद्दीन बीमार है? उसे सुल्तान के पास भेजने के बजाय क्या आप उसे मेरे बेटे के लिए भेज रहे हैं? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, हम रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हैं। हैरान ना हो, हम जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी रहमत का एक कतरा है। उधर हम देखते हैं कि पनाहगाह में खवातीन और बच्चे मौजूद होते हैं। मैला गुस्से में शमसा की जानिब देख रही होती है। फातिमा खातून समेत सब खवातीन फतह की दुआएं मांग रही होती हैं। शमसा को देखते हुए मैला उस लम्हे को याद करती है जब वजीर सलाउद्दीन ने उसे कहा था, हम अपनी मर्जी से पनाह लेने वालों को किसी के हवाले नहीं करते। जब तक आप यहाँ हैं आप महफूज हैं और हम औरतों या बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। इन सब ख्यालात के बाद मैला कहती है, शमसा तुम इतने खुश नसीब क्यों हो और मैं इस किस्मत से इतनी दूर क्यों हूँ खुदाया। फिर वो मुसलसल शमसा खातून को देखते ही चली जाती है। बाहर बालेन मजीद कहता है, वजीर सलाउद्दीन एक और मसला है। कौन मैला? हमें मालूम हुआ है कि वो कायरा में है, अगर आप उसे हवाले कर दें तो। वजीर सलाउद्दीन उसे रोकते हुए कहते हैं, कौन मैला यहाँ पे मर्जी से आई थी, मैं उसकी रजामंदी के बगैर उसे वापस हवाले नहीं करूंगा। इसलिए में लतीफ वहाँ पे आ जाता है। वजीर सलाउद्दीन उससे कहते हैं, तबीब लतीफ अपने इल्म का एजाज अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, इन्हें बताएं कि तलवार और शिफा दोनों हमारी जानी बयानी के अहले इस्लाम की तरफ से आती हैं। मुझे यकीन है कि आप शहजादे बाल्डोन के लिए सब कुछ करेंगे और जब आप कुछ पहुंचे तो अपनी सलामती का अहवाल भेजेंगे। हम जरूर इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। तो लतीफ कहता है, जैसे आपका हुक्म। इमारलेक कहता है, मैं एक दिन इसका बदला जरूर दूंगा। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, बादशाह इमारलेक में ये वापसी की उम्मीद पर नहीं कर रहा। अब आइए मजीद अल्फाज ज़ाय के बगैर अपनी अपनी सफ़ों की तरफ लौटते हैं। वो दोनों पलटते हैं मगर इमारलेक एकदम से कहता है, वजीर सलाहुद्दीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। इमारलेक के जाने के बाद बोरो वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, कुफार जंग के दौरान अहले इस्लाम से सबसे ज्यादा सीखते हैं। काजी फजल कहते हैं, उससे आपने अपने दिल की अजमत का इजहार कर दिया है, यहाँ तक कि दुश्मन के लिए वजीर सलाहुद्दीन, और आपने ऐसा शाम से आने वाली मदद की उम्मीद के बगैर किया है। आपके साथ होकर आपके साथ इस रास्ते पर चलना दोनों जहानों में मेरे लिए एजाज की बात है। ये कहते साथ ही वो वजीर सलाहुद्दीन के गले लग जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा साथी अता किया है जो नेकी की कदर करता है और बुराई की मजम्मत करने से नहीं डरता। चलो अल्लाह हमारी मदद करे। ये कहते सुनते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। इमारलेक अपने साथियों और हकीम लतीफ के साथ वापस फौज की जानिब बढ़ता है और विलियम से पूछता है, बताओ विलियम, क्या बेहतर है, जिन लोगों में ऐसा इखलाक है उनसे दोस्ती करना या उनका दुश्मन बनना? आपके ख्याल में खुदा किसको पसंद करता है? तो विलियम कहता है, इज्जत मैं आप में समझता हूँ कि आप आजिज नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर हम बाज़ंतीन के साथ अपने इत्तेहाद को बरकरार नहीं रखते। इमारलेक उसे रोकते हुए कहता है, मैं खुदा के साथियों के साथ इत्तेहाद का ख्वाहा हूँ। मैंने अभी देखा जबकि मैं बाज़ंतीन का इत्तेहादी हूँ, मेरा दुश्मन खुदा के साथ है। बालेन पूछता है, क्या आप हमले का हुक्म नहीं देंगे इज्जत माब? तो विलियम कहता है, बादशाह का उनके सलाम के साथ सलाम करना इस बात की इलामत है कि हम हमला नहीं करेंगे। बालेन उनके साथ लतीफ को देखकर मारिया कहती है, ये कौन आ रहा है? इसलिए इमारलेक वहाँ पहुंचकर घोड़े से उतर जाता है और अपनी फौज के सामने आ खड़ा होता है। मारिया उससे पूछती है, उन्होंने शहर हवाले करने की पेशकश तस्लीम नहीं की है ना बादशाह सलामत? तो इमारलेक कहता है, उन्होंने बिल्कुल तस्लीम नहीं की और मैं कुछ का बादशाह इमारलेक अपनी फौज को वापस हटाने जा रहा हूँ। यह सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं, चातियां लाड़काए मारिया सब। मारिया कहती है, बादशाह सलामत देखें ये पागलपन है, आप नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कर रहे हैं। इमारलेक कहता है, बस बादशाह मैं हूँ और फैसला भी मैं करूंगा। मैंने लड़ने का फैसला किया और अपनी फौज को यहाँ लेकर आया। अब मैंने लड़ाई को रोकने का हुक्म दिया है और मैं अपनी फौज के साथ वापस जाऊंगा। मारिया पूछती है, आपने ये फैसला किस चीज की बुनियाद पर किया है? इमारलेक आगे बढ़ते हुए कहता है, अपने बेटे की जिंदगी के लिए। कायदा की बुलंदी पर से मंजनी के देखते हुए बोरो कहता है, उनके ये मंजनी के लाना ठीक नहीं लग रहा। तो वजीर सलाहुद्दीन अच्छे से कहते हैं, हदफ के मकामात को लकड़ी और मिट्टी से मजबूत करो, कोई कमजोर जगह मत छोड़ना। ये सुनते साथ ही अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हमें फिर से लश्कर दिखाया जाता है और ये बहुत बड़ा लश्कर दिखाई देता है। मारिया गुस्से में आगे बढ़ती है और इमारलेक के पास आकर कहती है, हम यहाँ तक आए हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते। याद रखेंगे इस इत्तेहाद की वजह से आपको बाज़ंतीनी बादशाह के खिलाफ जाने का खतरा मोल लेना होगा। इमारलेक गुस्से से कहता है, यहाँ सिर्फ एक ही बादशाह की हुकूमत है और वो मैं हूँ। मारिया कहती है, आप सिर्फ अपने सिपाही अपने साथ ले जा सकते हैं बादशाह सलामत। बाज़ंतीन के अजीम सिपाहियों, अपने मुआवजे की जगह संभालो। ये सुनते साथ ही दमियात से आने वाले सिपाही अपनी ढालें उठा लेते हैं। लाड़काई भी कहता है, मैं अपने सुरमाओं को ये वजात नहीं कर सकता कि हम पीछे क्यों हट रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ रुककर लड़ना चाहता हूँ। चातक्योन भी कहता है, अगर कोई एतराज ना हो तो मुझे भी अपनी बीवी के लिए लड़ना पड़ेगा। उनकी ये बातें सुनकर इमारलेक को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, मेरे हुक्म को तुम कैसे टाल सकते हो? सिपाहियों तरतीब बनाओ, हम वापस जा रहे हैं। ये सुनते साथ ही कुछ की फौज वापस मुड़ जाती है। बालेन के इशारे पर उसके सिपाही भी अलग हो जाते हैं, मगर लाड़काई मारिया और चातक्योन वहीं पे खड़े रहते हैं। मारिया कहती है, आप अपने जज्बात के हाथों शिकस्त खा गए बादशाह सलामत। इमारलेक गुस्से से कहता है, आप इसका भारी बदला चुकाएंगे। मैं तुम सबसे तुम्हारी वफादारी और धोखाधड़ी का बदला लूंगा। इसके साथ ही कुछ का लश्कर अलग हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद लश्कर काफी बड़ा दिखाई दे रहा होता है। ये मंजर देखकर बोरो कहता है, इमारलेक लड़ाई छोड़कर जा रहा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शानदार फैसला। वो सोचता है कि वो इससे हमारा एहसान चुका रहा है, लेकिन बाज़ंतीनी फौज अब भी यहाँ मौजूद है। ऐसा लगता है कि ये एक मुश्किल जंग होने वाली है। इमारलेक के जाने के बाद लाड़काई सिपाहियों से कहता है, हमारे दीवारों को कमजोर करने के बाद आप फौरी तौर पर हमला करके अंदर जाएंगे। चातक्योन इसकी में उसे कहता है, मुझे उम्मीद है कि बादशाह को छोड़कर मलका के साथ रहना कोई गलत इंतखाब नहीं होगा। जवाब में लाड़काई कहता है, हम देखेंगे। उन्हें देखते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, लाड़काई तकब्बुर का जीता जागता नमूना। जवाब में बोरो कहता है, और ये तकब्बुर ही उन्हें अंजाम तक पहुंचाएगा। लाड़काई सिपाहियों से कहता है, मंजनी के तैयार करो, दीवारों के शुमाली हिस्से को निशाना बनाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। इधर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ए अल्लाह हमें शानदार फतह नसीब फरमा, हमारे दुश्मनों के कदम लड़खड़ा दे, उन्हें शिकस्त दो चार कर। सब आमीन आमीन कहते हैं। कायदा के सामने लाड़काई के इशारे पर एक दस्ता मंजनीकों की जानिब दौड़ पड़ता है। ये देखकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो मंजनीकों से दीवारों पर दावा बोलेंगे, उन पर तीरों की बारिश कर दो, उन्हें करीब मत आने देना। बाज़ंतीनी सिपाही मंजनीके तैयार
इंतजार करके दावा बोलने ही वाले होते हैं कि वजीर सलाउद्दीन के इशारे पर तीर छोड़ दिए जाते हैं। जबरदस्त अंदाजी से मशल उठाए बाज़ंतीनी सिपाही जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। हमला देखकर लड़का कहता है मलका की हिफाजत करो। यह सुनते साथ ही सिपाही मलका के सामने इशार बना लेते हैं। एक तूफानी तीरंदाजी जारी होती है जिसकी वजह से बाज़ंतीनी सिपाही मंजनीक से हमला नहीं कर पाते। वो बार बार कोशिश तो करते हैं मगर तीरों का निशाना बनते ही चले जाते हैं। उन सबके मरने के बाद एक मजीद दस्ता मंजनीकों की जानिब भाग पड़ता है मगर वो भी तीरों का शिकार बनने लग जाता है। ये देखकर मारिया कहती है ये ठीक नहीं हो रहा कमांडर। तो संगारियोस कहता है कायदा आसानी से नहीं गिरेगा लेकिन कोई किला ऐसा नहीं जो गिराया ना जा सके। बाज़ंतीनियों पे मुसलसल तीरंदाजी जारी होती है। दूसरे दस्ते को भी मरता हुआ देखकर चातियों चिल्लाते हुए कहता है ढाल बरदार प्यादा फौज मंजनीकों की हिफाजत करो जल्दी। ये सुनते साथ ही ढालें उठाए एक दस्ता मंजनीकों की जानिब बढ़ता है। कुछ देर तक तो वो ढालों के जरिए तीर रोकते हैं और हमले भी कायदा की जानिब करते हैं मगर मंजनीकों का फासला दुरुस्त नहीं होता और कायदा से पहले ही गोले गिर जाते हैं। ये देखकर कुफ्फार मजीद परेशान हो जाते हैं। ढाले होने के बावजूद भी उस दस्ते के सिपाही मरते ही चले जाते हैं। वजीर सलाउद्दीन की तीरंदाज जबरदस्त महारत दिखाते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही फिर से गोले छोड़ते हैं और ये भी कायदा तक नहीं पहुंच पाते। साथ साथ वो अपनी जाने भी दे रहे होते हैं। ढाले भी उन्हें बचा नहीं पाती। गोले भी बेसूद दिखाई देते हैं और वो फजूल की कोशिश करते ही चले जाते हैं। ये देखकर बोरो कहता है उनकी हद अभी दूर है लेकिन वो करीब आने की कोशिश करेंगे। मुसलसल नाकाम होने पर एक बाज़ंतीनी सिपाही अपने साथी से कहता है मंजनी की हद तक नहीं पहुंच पा रही लड़के को खबर करो। ये सुनते साथ ही तीन सिपाही भागते भागते लड़के के पास आते हैं और कहते हैं जनाब हमने मुसाफत का गलत अंदाजा लगाया हमें माफ कर दें। लड़का चिल्लाते हुए कहता है लानत हो बेवकूफ हो। ये कहते साथ वो एक को मौत के घाट उतार देता है और बाकियों से कहता है मंजनी के आगे बढ़ाओ चलो। हुक्म मिलते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही मंजनी के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कई अपनी जानें गंवा बैठते हैं। तीर रुकने का नाम नहीं लेते। लड़के और चातियों की परेशानी में इजाफा होता ही चला जाता है। जंगल में ताजिर आसिफ सायरा के पास आता है। सायरा पूछती है क्या आपको कुछ पता चला? तो आसिफ कहता है वो शहर का दिफा कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फौज दीवारों से बाहर आएगी। सायरा कहती है उन्हें आना होगा। वो साथ साथ ये मंजर देख रहे होते हैं। जंगल में वापस कुछ की जानिब जाते हुए इमाम लेग लतीफ से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी दवा असर करेगी लतीफ? तो लतीफ कहता है मैं इस चीज के बारे में यकीन से नहीं कह सकता बादशाह सलामत। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने अब तक जो दवा तैयार की है ये उनमें सबसे ज्यादा मौसर है। मैं जानता हूँ कि ये बीमारी को कम कर देगी लेकिन इसके बाद क्या होगा इसकी जांच मुकम्मल करने का मुझे मौका नहीं मिल सका। इमाम लेग उससे पूछता है तुम क्यों मुकम्मल नहीं कर पाई? तो लतीफ कहता है क्योंकि कुछ के बादशाह ने मेरे खानदान को एविडेंस से जिलावतन कर दिया था बादशाह सलामत। मैं उन मरीजों तक वापस नहीं पहुंच पाया। इमाम लेग परेशान होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि हमने अपने इकदार को आहिस्ता आहिस्ता खो दिया है। बालेन कहता है बादशाह सलामत आज जो कुछ हुआ उसके बाद आप कुछ में वही निजाम बरकरार नहीं रख सकते। विलियम कहता है बालेन ठीक कह रहा है बादशाह सलामत, अगर आपके हुक्म की नाफरमानी करने वाले जंग हार गए तो कुछ को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जवाब इमाम लेग कहता है कीमत से कहीं ज्यादा विलियम वो अपना घर खो बैठे हैं। अब वो चाहे जंग जीत भी जाए उन्हें मौका नहीं मिलेगा। मैंने जो लेना था ले लिया और जो देखना था देख लिया। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। कायदा में मुख्तलिफ जगहों से धुआं उठ रहा होता है। वजीर सलाउद्दीन बुलंदी पर से अपने साथियों के साथ नीचे आ जाते हैं। काजी फाजिल उनसे कहते हैं वो अगर इसी तरह हमले करते रहे तो हम दीवारें ज्यादा देर खड़ी नहीं रख पाएंगे। बोरो कहता है हमें मंजनीकों के खिलाफ कोई हल तलाश करना होगा। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं उन्हें बाहर से तबाह करने के सिवा और कोई हल नहीं है। बोरो कहता है मुझे जाने दें मैं संभाल लूंगा। मगर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं नहीं मैं वहां जा रहा हूँ तुम यहीं रुको। यह सुनकर बोरो कहता है कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी हिफाजत किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं और तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मगर बोरो कहता है भाई अगर करना पड़ा तो मैं आपको कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। हमें सुल्तान नूरुद्दीन की हालत का अभी तक इल्म नहीं। मैं आपको दुश्मन की तरफ नहीं भेज सकता। हमारी उम्मत को रहनुमा की जरूरत है। आप सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। हर कोई जानता है कि इस उम्मत के लिए सलाहुद्दीन जैसे रहनुमा को पैदा करना आसान नहीं है। तो मुझे सलाहुद्दीन की हिफाजत करने का शर्फ हासिल करने दें। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन बोरो की जानिब देखने लग जाते हैं। अब मंजनी के पास होती हैं और दीवारों के साथ उनके गोले टकरा रहे होते हैं। यह मंजर देखकर चातियों बहुत खुश होता है। लड़का मारिया से कहता है मेरी मलका कायदा गिरने वाला है। तो मारिया कहती है मिस्र की फतह के साथ ही कुछ में एक नए दौर का आगाज होगा और आपको आपकी वफादारी का सिला मिलेगा। ये कहते साथ ही मारिया पीछे चली जाती है। अंदर काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं अगर आप मारे गए तो उन्हें दीवारें भी गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कायदा खुद बखुद गिर जाएगा। करातेगन कहता है बिल्कुल बोरो ठीक कहता है, आप यहाँ पे छोड़ दें, हम दो भेड़िए साथ मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। काजी फाजिल कहते हैं मैं जानता हूँ कि उर्फा के साथ जो कुछ हुआ आप अभी तक नहीं भूले। आप नहीं चाहते किसी और को कोई नुकसान हो लेकिन हमें यही करना होगा। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। बाहर बड़ा लश्कर कायदा को रोंदने के लिए तैयार खड़ा होता है। हमने देखकर लड़का कहता है हमें एक आखिरी दचका देकर इसे खत्म करना चाहिए। तो चातलेउन कहता है बिल्कुल बिल्कुल इसको खत्म करते हैं ताकि हम कायदा की हसीनाओं तक पहुंच पाएं। हम सबको मिलकर हमला करना चाहिए। ये कहते साथ वो तलवार बेनियाम कर लेता है। लड़का सिपाहियों से कहता है हदफ शहर का दरवाजा है, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते साथ ही पूरा लश्कर तलवारें बेनियाम कर लेता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों और सिपाहियों से कहते हैं मेरी बात गौर से सुनो, या तो मिस्र गिरेगा और हमारे दावा का परचम भी गिर जाएगा, या हम मिस्र को दुश्मनों से बचाएंगे और कुछ की फतह का ऐलान करेंगे। अब से हमारा उठाया जाने वाला हर कदम कुछ के लिए। वो तलवार लहराते हैं तो सब यही नारे बुलंद करते हैं कुछ के लिए, कुछ के लिए, कुछ के लिए, कुछ के लिए। भाई लड़का अपने सिपाहियों से कहता है आज सुलेब की रोशनी को इन वैश्यों के अंधेरों में उजागर करने का दिन है। हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर देंगे जिसने सुलेबी तहाद को तोड़ने का अहद किया था। हम मिस्र पे कब्जा करेंगे। मिस्र पर कब्जा करना सुलेबी तहाद की फतह है और कुछ पे नजर जमाने वालों के खिलाफ बेहतरीन जवाब। याद रखो हम खुदा की फौज हैं और खुदा यही चाहता है। यह सुनकर काफिर तलवारें लहराते हुए कहते हैं खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं सबसे पहले वो हमें बाहर जाता हुआ देख ना ले, इसलिए हम धुआं फेंकेंगे। जब दुश्मनों की आंखें बंद होंगी हम फिर बाहर जाएंगे। बोरो कहता है मुहासता तोड़कर मंजनीकों को जला देंगे। वजीर सलाहुद्दीन के साथी धुएं के मटके उठाए बुलंदी पे खड़े होते हैं। लड़का सिपाहियों से कहता है दरवाजा खोले बगैर वापस मत आना। वजीर सलाहुद्दीन के इशारे पर मटके फेंकने शुरू कर दिए जाते हैं। ये देखकर चातियों हैरान होते हुए कहता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, क्या ये जहर है? तो लड़का कहता है धुआं छोड़ा जा रहा है, सिपाही होशियार रहो, वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर सलाहुद्दीन के साथी मुसलसल मटके
के फेंकते ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से धुआं ही धुआं फैल जाता है। अगले लम्हे दरवाजा खुलता है, बोरो करातेगन सिपाहियों के साथ बाहर की जानिब दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर लड़का कहता है, सिपाही बाहर आ रहे हैं, यह धुआं हमारी बिनाई को रोकने के लिए है। बज़ाहिर उनके पास एक मंसूबा है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। बड़ी तादाद में कायदा से सिपाही निकलते ही चले जाते हैं। चापकेओन चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों हमला। ये कहते और सुनते साथ वो सब उनकी जानिब दौड़ पड़ते हैं। दोनों तरफ की अफवाज आपस में टकरा जाती हैं। करातेगन और बोरो सिपाहियों को काटते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उनकी तलवारें आपोताप से चल रही होती हैं। उनका हदफ मंजनी के होती हैं। तुराब और अली भी उनका भरपूर साथ देते हैं। अलबेज भी अपने कुल्हाड़े से काफिर को जहन्नुम वासिल करता ही चला जाता है। चापकेओन लाड़गए और दूसरे कमांडर मुसलमानों को शहीद करते जाते हैं। संगारियोस भी अपनी जंगी मारते दिखा रहा होता है। बोरो और करातेगन सिपाहियों के दरमियान से होते होते बाहर निकल जाते हैं। बोरो अली और तुराब से कहता है, यहीं पे रुको और हमारी हिफाजत करो। करातेगन तुम मेरे साथ चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि बाज़ंतीनी अली और तुराब पे हमला कर देते हैं। इस मंजर को देखते हुए लाड़गए संगारियों से कहता है, जाओ उन्हें ले आओ। ये वाज़ेह है कि वो मंजनीकों के लिए आए हैं। आगे वाला सलाउद्दीन का भाई बोरो है, मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। यह सुनते साथ ही संगारियों सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। मंजनीकों से काफिर हमले कर ही रहे होते हैं कि करातेगन और बोरो सिपाहियों के साथ उन तक जा पहुंचते हैं और वहाँ पे उन्हें आनन फानन मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर करातेगन और बोरो मंजनीकों पे बारूद डालने लग जाते हैं। बारूद डालने के बाद करातेगन एक मंजनीक को जला डालता है। बोरो भी दूसरी को आग लगा देता है। करातेगन पीछे हट जाता है मगर बोरो को घेर लिया जाता है। बोरो मजामत की भरपूर कोशिश करता है मगर काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर करातेगन बहुत परेशान हो जाता है। मंजनीकें जलते ही चली जाती हैं। करातेगन सिपाहियों से कहता है, चलो चलो वो उसे कैदी बना लेंगे, वक्त जाया ना करो। वहाँ पहुंचने वाला संगारियों सिपाहियों से कहता है, मैं इसे जिंदा चाहता हूँ, मारो मत इसे। यह सुनते साथ ही बाज़ंतीनी नेज़े उसके पास कर देते हैं और बोरो गुस्से में संगारियोस की जानिब देखने लग जाता है। कायदा के दरवाजे पर वज़ीर सलाउद्दीन अपने साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। मंजनीकें पूरी तरह से जल के राख हो जाती हैं। यह देखकर वो खुश होते हुए कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मंजनीकें जल गई हैं। इसलिए मैं करातेगन भागता भागता अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है। उसके साथ बोरो ना देखकर वज़ीर सलाउद्दीन परेशान होते हुए पूछते हैं, बोरो कहाँ है? शर्मिंदगी में करातेगन कोई जवाब नहीं देता। वज़ीर सलाउद्दीन सामने देखते हैं तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, बोरो। और नाज़रीन, इसके साथ ही इस शानदार एपिसोड का इख्तिताम होता है।